I mean, if you're looking at the basis of the judgment, yeah, the basis of the judgment emanates from the Constitution. So unless the Constitution were to be amended, Samiullah Baloch could not be undone. So, because Samiullah Baloch is interpreting a constitutional provision, and Samiullah Baloch basically holds that the declaration which is referred to in 62(1)(f) has to remain in field till such time, till such time the declaration in the field, the disqualification stands. Then what my lord has observed carries. There is no time limit provided under Article 62. So there are no time limits as far as my lord the Chief Justice had just gone through, took us through clauses A through G. Now as far as D, E, F are concerned, they are all without any timeline. Now the question before your lordships, and it was also argued in Samiullah Baloch, in fact all the councils before Samiullah Baloch. If we consider that through Samiullah Baloch the Constitution has been amended, then the constitutional amendment is required, as per my understanding. My lord, it is interpretation. My lord, with respect, Samiullah Baloch also read something into the Constitution which was not provided. And like, what did they read into the? My lord, while comparing now, while examining 62(1)(f), the court held that so long as the declaration is in the field, this disqualification stands. While at the same time, when they were examining 63(1)(h), which is under 63 and relates to moral turpitude, which includes dishonesty, and there is a 5-year time limit, the court took a different view while examining both, and it said that, because there is a personal cost price that a person has. This half-hourly clock is brought to you by Advanced Hair Removing Formula, Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream. Of interpretation, because what's very interesting, speaking for myself, if you look at 63 G, H and I, yes, I mean most of the heinous crimes, especially against the integrity and sovereignty of the country, and that person can be allowed to contest election. Where there are punishments, he goes through punishments and comes out and contests election. What is a bit odd is that a civil declaration, which is just for some misdemeanor, like misconduct, which doesn't even carry a criminal punishment. Absolutely. That carries an absolute bar for the rest of the life. That seems to be a bit odd, because if you commit murder, you commit treason, you commit whatever, you can come back and contest election. But if you just forget to write something in the form, you would be out forever. So how does one reconcile? So it's a matter of interpretation. Yes, so that is what my respectful submission would be, because in both, in G, H and also in I, there is an adverse finding against the person, a declaration by a court of law against that person. In those proceedings, those declarations of course subsist. He serves the time or whatever punishment provided by law, and then he can come back in after 5 years. Now here, while looking at 62(1)(f), where there is this, the standard of proof is lower compared to those criminal proceedings under 63(1)(h), which is beyond any shadow of doubt, and that declaration has still come out beyond any shadow of doubt. And here is preponderance of evidence, or somewhere between the two, and here the person is out forever. But before we go into that, could you just explain to us how can any court, a civil court, grant declaration which is in the negative? I mean, how can a court grant a declaration that you're not sagacious? That cannot happen. So how does that work? I mean, I've been always perplexed about this. We can't get a negative declaration from any court. Can a court say that you're not sagacious? Why would that happen? Because no civil proceedings could lead to a negative declaration as positive. So I don't understand how a court will ever give such a declaration. So then most of the courts which have given this declaration are the constitutional courts. So you have that's another question. And in those cases, is the declaration absolutely clear? I mean, does it say that you're not sagacious, or then we infer from the judgment that because you presented a fake degree, as a consequence we understand that you are not a mean? I mean, can we just go to the language of 62(1)(f) to understand what do we mean by declaration? Declaration, and also what is a court of law? Because, and I say this, and my lord has just
observed. In Ishaq Hakwani's case in 2015, a 7-member bench actually framed these 4 questions. They left them unanswered for some other case in future. And those questions were that what would be that court which is to give this sort of declaration? What would be the procedure? In that case? They left it open, sir. These questions were not answered by a 7-member bench. So which court would it be? What procedure would it follow? What would be the standard of proof? And who will have the locus standi? Now, these are the questions which are very, very relevant for the purposes of for this declaration by a court of law. And then also whether the courts exercising, let's say, constitutional jurisdiction, who cannot record evidence, where witnesses cannot be cross-examined, a person against whom an allegation has been brought cannot really defend himself as he is able to in a trial, would the declaration coming from constitutional court suffice for 62-1? So, Attorney General, the question which has been there for a while now is, first of all, can there be a civil court granting a negative declaration, number one? And number two, the question is that in constitutional proceedings where there is no evidence being taken, the court has arrived at a decision that a fake degree has been, for example, I don't know what the other cases are, fake degree has been presented by this person, does not necessarily mean that the court is moving further and saying that you are now non-sagacious or whatever. It's simply saying in this particular matter a false degree was presented. But I don't know of any judgment where they've actually gone ahead and said then as a consequence you're a fraud. So I don't know, so is there a declaration actually coming out of the Constitutional Court also? And can they, without taking any evidence, give such a declaration about a person? My respectful submission is, my lord, that a constitutional court, now mindful that this 7-member bench left these questions open, but then there are 2 judgments. One in PLD 2015 Supreme Court 265, which is Panama 1. Justice Ijaz Afzal Khan, speaking for majority, said that a court of law for the purposes of 62(1)(f) would be a court which can actually record evidence, which is a plenary court of original, revisional, appellate jurisdiction in civil and criminal proceedings. But without recording evidence, declaration can be given? Cannot be given. Yeah. And then the same... But even a negative declaration cannot be given, even if you record evidence. Right, I don't understand this. So and then in Aladino Bhayo, the second Aladino Bhayo, the review Aladino Bhayo, they revisited the original judgment which was given in 2013, where under it was held that once a declaration under 62(1)(f) is given, it does not go away with the flux of time. Declaration में तो यही है ना कि person may not file his own case for declaring him Amin. Yeah. Somebody has to challenge his character. That's right. Then in that case, the declaration will come whether he is Amin, sagacious, righteous or not. Yeah. So ये declaration होगा ना, खुद तो जाके नहीं मांग सकता declaration. दूसरा negative as per somebody will come challenging. सिर्फ paternity पे हो सकता है शायद. एक exception है 42 में. There is no other exception. Section 42 में तो legal character कोई deny करता है तो suit file होता है ना. If somebody is denying his legal character, then he can file the suit under section 42 of the Special Act. What right? और अगर आप constitutional courts के cases भी ले लें ना, तो for example somebody has not, for example election tribunal says that the nomination form में फलां चीज नहीं है, तो मिस डिक्लेरेशन इन्होंने की है. चलो ये बात तो हो गई, इन्होंने मिस डिक्लेरेशन की. अब इसका क्या मतलब, फिर हम खुद जोड़ते हैं, हम कहते हैं कि क्योंकि मिस डिक्लेरेशन की है इसलिए फिर आप अमीन नहीं है, इसलिए 62(1)(f) लग. But the court has not said it. The court is not declaring that you are non-sagacious or not Amin. But the court is simply saying you have filed, there has been a misdeclaration in the form. So, उस पर जरा elaborate करें, how do we actually get, where is the declaration, actual declaration from the court? तो उसमें कहीं पर वो correction के भी provision है अब जो nomination papers हैं. और ये सो मोटो डिक्लेरेशन है या कोई केस फाइल होने के बाद है ये डिक्लेरेशन? Now, this is again very interesting because in some judgments in Sher Alam's case, for example, the court says that a writ for quo warranto can be filed, and that obviously comes in constitutional jurisdiction. And in fact, this court can take suo motu notice under 184(3) and gives quo warranto. देखना वो तो Article 199 में it is totally different. बिल्कुल. The person has to show under what authority of law he is enjoying the office. That's right, sir. But वो तो office में जाने के बाद है, not prior to. जी office में जाने के बाद होगा, but as far as that declaration is concerned, question is, can that declaration be given in those proceedings, or for that person has to
somebody has to go to civil court or some court which has the original jurisdiction to try and receive evidence, allow the person against whom an allegation has been brought to cross-examine. एक चीज जरा देखिए, come back to Article 62. My lord. Read G. He has not, after the establishment of Pakistan, worked against the integrity of the country or opposed the ideology of Pakistan. Yes. Now, if we read 62(1)(g) on its own with the judgment of Samiullah case, the ban is lifetime ban. But if we read them together. Now read 63(1)(g). It's the same language, ideology of Pakistan. For propagating, and here it prescribes a ban for 5 years. Or the sovereignty, integrity, or security of Pakistan. No, it's the same 62(1)(g) and 63(1)(g) are more or less similarly worded. That's right. It is working against integrity or opposed to the ideology of Pakistan. That's right, sir. Now, if we apply Samiullah Baloch to 62(1)(g), it is lifetime ban. And if we apply 63(1)(g), it is 5-year ban. Unless you say 62(1)(g), Samiullah Baloch is not attracted to 62(1)(g). That could be one argument. So it's interesting what my lord has observed, because if a person is dishonest और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए और उसको सजा हो जाए तो फिर 2 साल काटने के बाद 5 साल बाद वापस आ जाएगा. मुकदमा ना हो और पता नहीं क्या हो और एक declaration आ जाए तो then he's gone. If he has been convicted and goes to jail, so his sins are expiated. Right, and he is okay. Yeah. Now, if he is, for instance, acquitted or is not even prosecuted, then he is lifetime banned. So I find it difficult that a court of law which has convicted a person, meaning your guilt was established 100%, you are banned for only 5 years, and if your guilt has not been established, because every criminal case has 2 components, conviction and sentence. That's right. You can be convicted and you can be sent on parole, or you can be convicted till the rising of the court, or whatever it is. Or maybe not, say for good conduct, we don't convict you this time, we don't sentence you this time, we just convict you. That's right. So that will be a lifetime ban, and the person will say, can you please send me to jail so I can contest elections again after 5 years? Yeah, I would rather the rising of the court so I can just go back after 5 years. So then see, certain things are very clear. You are a citizen of Pakistan. I mean, I find okay that it's pretty clear. There may be some grey areas where you may be holding 2-3 nationalities or whatever the case is, or you may have given up or whatever. But generally, age is a determinative factor. It's clear. And then we come to D, E, F, and G, which are vague. And they're overlapping as well, because it says is of good character. Now, can any human being possibly say this on oath if he's truthful? If he's truthful. So it appears that as far as D, E, and G is concerned, there's no third-party declaration. You know, who's actually saying that he doesn't have adequate knowledge of Islam? Who's saying that he's said anything against the integrity of the country? So there's no third party, right? So how does the disqualification work? On that election, and then it forgets about it, and then the next election he can contest? I mean, we found out that he doesn't have adequate knowledge of Islam 20 years ago, and he missed the elections that time. Then he's now become a saint, perhaps. Alim. An alim. And then what happens? Hafiz, alim. So एक तो वो समझ नहीं आ रही, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि F में तो ये है कि एक declaration खड़ी हुई है third party की, तो जब तक वो खड़ी हुई है वो चलता रहेगा. That's what Samiullah Baloch is saying. Samiullah Baloch actually turns on the declaration. वो हुआ ये कि actually 18th Amendment में ये जो declaration by court of law लाने का purpose तो ये था कि वो returning officers जो है ना वो डिटरमिन ना करते रहे या इस किस्म का एलिगेशन कोई और रैंडमली ना आकर लगा दे, और ताकि ये जो डी, ई और जी के अंदर जो हो सकता है वो एफ में ना हो. आपके मुताबिक उल्टा हो गया. How does D, E and G play out actually? I want to ask this question. आज से 10 साल पहले किसी ने इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के बारे में कोई बात स्पीच कर दी, बस खत्म हो गई बात. अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता.
ये देखिए कुछ लोग होते हैं तो उन्होंने 5 years कर दिए ना, वो कहते हैं यस आई हैव सीन द लाइट। अब इस्लाम में भी तौबा की गुंजाइश आखिर मिनट तक है। वो कह सकता है जी मुझे, जैसे माय लॉर्ड ने ऑब्जर्व किया कि मुझे इस्लाम के बारे में नहीं पता था, अब मैंने सारे अब लाइफ टाइम बैन उसको कर दिया कि वो फिर शायद हाफिज बन गया हो सकता है, आलिम बन गया हो सकता है, आप और बेहतर और हम सबसे बेहतर कुरान शरीफ समझने लगा हो, और वो लाइफ टाइम बैन में आ गया क्योंकि उसको 20 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले इन चीजों के मुतालिक इल्म नहीं था। समीउल्लाह बलूच जो है इट एक्ट्स एज अ गिलोटिन। वो कहते हैं कि जब आखिरी अपील में जब आप आएंगे तो बस उसके डिसीजन से पहले तो अगर आप रिपेंटेंस कर लें तो हो सकता है, वरना वंस that happens then there is no repentance। कहाँ छोड़ा? नहीं छोड़ा। 184.3 में तो वैसे ही नहीं होता, बट अदरवाइज भी नहीं। रिपेंटेंस कहाँ लिखा हुआ है? साहब सुनने जरा, जी साहब समीउल्लाह बलूच देखिए, इसमें असल बात यह है कि डिफरेंस हमने मालूम करना होगा 62 63A में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? एज फार एज आई एम कंसर्न 62 is not giving power to decide against a person। देखिए इसमें तो सिंपल ये इट इज डिपेंडेंट अपॉन 63 में जो कार्रवाई करेंगे वो दिखाएंगे, 62 में वो कहेंगे यू आर नॉट क्वालिफाइड। वेयर एज डिस्क्वालिफिकेशन इज इन 63। अगर कोई शख्स सपोज कोई काम करता है, कोई गलत काम करता है, तो अगर आप जी और एच को पढ़ लें, जी और एच वो डिटरमाइन करते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ से जब उसको कोई डिक्लेरेशन हो, ये उस डिक्लेरेशन की बात हो रही है, आई थिंक सो जी। आइए इस पर बात करें कि ये 62(1)(f कहाँ पे पावर देते हैं कि आप इतने टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हो, इतने टाइम के लिए। वो तो सिर्फ ये बताते हैं कोई शख्स पेपर सबमिट हो रहे हैं उससे पहले बता दिए कि ये फ्ला कोर्ट से इसको सजा हुई, लिहाजा पेपर खारिज, दैट्स ऑल, मैटर एंड्स। द अथॉरिटी डीलिंग विद दिस मैटर हैव नो पावर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड ऑफ दैट पर्सन। वो डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड तो 63 ने बता दिया, ये सजा जुर्म करोगे तो इतनी सजा होगी, और उस जुर्म की सजा पूरी होने के 2 साल बाद जब आप निकलेंगे तो फिर आप क्वालिफाई होंगे। तो ये आप जो पहला सवाल जो आपसे किया कि डिफरेंस, आप डिफरेंस जब बताएंगे तो खुद ब खुद पता चलेगा व्हाट इज 62 एंड व्हाट इज 63। So if 62(1)(f is juxtaposed with 63(1)(h, H and H both H moral turpitude, H moral turpitude है because वो उसके साथ dishonesty etc. वो उसके साथ है moral turpitude being very broad, और वो एग्जामिन हुआ समीउल्लाह बलूच। उसको अगर आप सामने रखें तो the consequence then, if they are to be reconciled, then the consequence is only one, which is that the timeline which is provided for the declaration in 63(1)(h must necessarily apply to the time to the declaration 62(1)(f। H में अगर conviction हो गई because it attracted an offense and so it led to conviction, then he can come back। But if it was even a case where it could constitute an offense and so he could not be taken in a criminal case, a simple declaration was given on the civil side, that goes on unlimited। अब यही समझ नहीं आती, because otherwise then we also have to stay away from the concept of reading into the constitution। But now that you have started reading in 63A, so I was just that is also a question। So you must stop from reading furthermore। Reading in just another aspect if you can attend to, can you read D? My lord, again? He is of good character and is not commonly known as one who violates Islamic injunctions। Now please read F. He is sagacious, righteous, non-profligate, honest and ameen, there being no declaration to the contrary by a court of law। Now what does this mean? There being no declaration to the contrary by a court of law. In clause D and in clause E and in clause G, these words are not mentioned. That's right। So either you say clause D, E and G are redundant, they're meaningless clauses, because the words there being no declaration, either the same wording should have been followed, and I can't, at least I cannot understand the difference between good character and sagacious. I mean, good character is something different from sagacious. Is good character different from being righteous? Non-profligate. What does that even mean? What does non-profligate mean? What does it mean? Who doesn't spend wastefully? Israf. Yeah. So good character. Yeah. So if you are doing wuzu and wasting water, you become a profligate. Because there's a hadith of the Prophet, that's right, do not waste water, and even if you're standing next to a flowing river.
So then he's a profligate. So, and then we go honest. Good character, every good character person is an honest person, I would imagine. And Ameen. I mean, you know, these are words which a Muslim would never even dare utter in deference to the Holy Prophet, that only he is and none of us are. I mean, that is humility and abject humility. You will never say that. Otherwise, why would you seek forgiveness for whenever someone dies, please forgive his sins? Do we ever say he's entitled to Jannat and Allah Ta'ala grant him Jannat? He never committed a sin. We don't even pray that for ourselves. No honest person will say any of these things, that he is sagacious, righteous, non-profligate. Even the greatest saints in Islam were scared when they were dying, that they were scared of death because they were apprehensive of what may they be meeting in the hereafter. So I don't know, is this generally a wish list kind of situation as opposed to because otherwise everybody can, if I was filing a lamination paper and if someone says he's not of good character, I would not even challenge it. I said, I'm sure I've done something wrong in my life. Maybe I've done it wrong yesterday, so I don't know. So if you're honest and you say, right, this person is right, I am not sagacious, righteous, non-profligate, honest. I do not switch off the lights when I go out of a room. I waste electricity. I waste human resources which the Almighty provides. So where does it end then? I can bring any case into disqualify someone, and I want to save someone, I can also do the same thing. That's why. Should such power vest in judges who are themselves humans? That's why they want a greater test for parliamentarians than they have for themselves. Does this language find mention in the oath of office of a judge? That I'm not profligate? Does it mention in the recommendations of a judge? All it says you have to be 45 years of age, practicing law for 10 years. So we have a lower standard than parliamentarians. Why is this language then not reflected there as well? You know, let's accuse ourselves before we accuse anybody else what they are or what they are not. So either we have a much lesser test, we can't, at least I would be very scared to meet this test, terrified to meet this test. So either we don't have a similar test. So we have to read the Constitution as a living whole, and where the Constitution has brought down the axe, it clearly says 2 years, 5 years, 3 years, 2 years, or it's factual, you're not a citizen, fine, that's very clear. There is no punishment here, but you're out. So without a punishment, you're out. There's no punishment. So, but suppose a person is a citizen of Pakistan, not a Pakistani citizen, but becomes a citizen of Pakistan later. Would he stand disqualified for life? Suppose he filed a nomination paper and he had another nationality or whatever, and he got disqualified. Is it disqualification for life? And then subsequently he said, okay, I've surrendered my US nationality and now I want to contest. So I don't know, we have to read it in a way that is meaningful. And we must bear in mind the conditionalities that were imposed to exclude people from this, the degree situation. Thankfully, it wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. That's right. No, he wasn't a graduate. Amendment कब हुई? ये amendment 2002 की 8 की 2002 में किसने की amendment? This is presidential order. क्या वो president खुद इन पे उतर सकता था, इन तमाम requirement पूरी कर सकता? But ये general military general ज़ियाउल हक नहीं होते, बाद में degrees करते हैं. शुरू में नहीं होता. Non-elected members अगर amendment करेंगे तो यही होगा. Mr. Attorney General, the question is that while we're looking at D, E and G, which to my mind appears to be a guideline for the voters, the actual gatekeepers, and they might keep this in mind when they're voting, because nobody can execute them and put anybody behind anything. So D, E and G to guideline ho sakti hai voters ke liye, and that's never been agitated. The $1 million question is, how do we look at the line, no declaration to the contrary by a court of law? What do we do with this? This is in the Constitution. If I may, I think my lords have raised the questions. Can we read the law on declarations? What is the law on declarations?
Section 42 of the Section 42 of the Specific Relief Act. I would imagine, is that the only declaration that has been indicated here? There is no other declaration. और तो कोई है ही नहीं. कोई और law होता है declarations का? Specific Relief Act. Only Specific Relief Act, Section 42. लीगल कैरेक्टर के ऊपर जो है ना वो दैट इज द ओनली लॉ. Declaratory suits are filed under 62(1) है. हो नहीं. Section 42 कॉन्स्टिट्यूशन में रहा. ये तो इन्होंने कर दिया ना. बट अगर कोई चैलेंज करेगा तो वो तो 42 में ही करेगा. नेगेटिव डिक्लेरेशन. Negative declaration concept है ना. Positive declaration is not negative declaration. We have held in paternity cases that you cannot do negative declarations. paternity can किया ना negative positive. negative कर सकते हैं paternity. Negative positive हाँ. Negative नहीं हो सकता है क्या? Person right to any character right of any property. दे देना इनको specific relief act सर. आप attorney general को दे देना. कह सकता हूँ कि हम honest. ये दे देना please. ये मैं दावा फाइल कर सकता हूँ कि झूठा नहीं, मैं honest. Yes. Ji. So that's it. Ji, sir. I have it before me. Mr. Jilani's iPad is very helpful. Discretion of court as to declaration of status or right. Any person entitled to any legal character or to any right as गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश गहराई में जाकर डर्ट और ऑयल रिमूव करें. गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश. लेट योर फेस ग्लो. जैज के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB यूट्यूब. अभी जैज वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज सुपर 4G. Golden Pearl White Beauty Cream with added super active serum, glutathione, alpha arbutin और niacinamide से dark spots gone. अब सबको मिलेगा bright glow मेरे जैसा. Golden Pearl White Beauty Cream. Love your skin. स्टार्ट कर. रास्ते घटाने वालों को, वतन जलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम. आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज. Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, Aloe Vera Gel और Vitamin B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे. Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion. जैज के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB यूट्यूब. अभी जैज वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज सुपर 4G. अब हेलो हेयर हर्बल शैम्पू के साथ अपने बालों को बनाएं थिक एंड स्ट्रॉन्ग, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में. गोल्डन पर्ल हेलो हेयर हर्बल शैम्पू, बाल मजबूत पॉकेट फ्रेंडली. दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज. Golden Pearl White Beauty Cream with added super active serum, glutathione, alpha arbutin और niacinamide से skin extra bright. Golden Pearl White Beauty Cream. Love your skin. दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज. गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं. दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज. Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, Aloe Vera Gel और Vitamin B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे. Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion. दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज. गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश गहराई में जाकर डर्ट और ऑयल रिमूव करें. गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश. लेट योर फेस ग्लो. जैज के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB यूट्यूब. अभी जैज वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज सुपर 4G. Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, Aloe Vera Gel और Vitamin B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे. Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion. दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज. गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं.
दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। हेलो हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस कंडीशनर। इसमें मौजूद मिंट और टी ट्री ऑयल डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करें और बालों को रिफ्रेश। मीट द न्यू यू। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन, एलोवेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन। जैज के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB यूट्यूब। अभी जैज वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज सुपर 4G। लफ्जी निश्तर, इल्जामात की गोलाबारी और तंज की बौछार। पीपल्स पार्टी बावजूद इन हालात के एक साथ जमहूरियत के खातिर, पार्लियामेंट के खातिर इनके साथ खड़ी है। देखिए, हमने ये थोड़ी तय किया कि हमें नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ, हमारे दरवाजे तो पीपल्स पार्टी के साथ भी खुले हैं। यानी इस कौमी जवाब आपने दे दिया। बड़ी खबर दे रहे हैं फारूक सत्तार साहब, आप नून लीग की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है उस हद तक जिस हद तक होना चाहिए। मैं मुतमईन हूँ या नहीं, हालात मुल्क के देखें, वहीं पे आपको जवाब मिल जाता है। हमारी अलाई पार्टीज के जो सरबराह थे उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया कि अब इसकी धमकी के ऊपर अगर ये काम करेंगे तो ये तो फिर हमें आगे लगा लेगा, तो इसलिए आप रुक जाए। इक्का दुक्का सीटों के लिए पूरी की पूरी नून लीग बलूचिस्तान पहुँच गई। ये हमारी वजह से धरती माँ के लिए अपनी माओ से दूर हो। इस दिन एहसास होता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। तुमने क्या किया लोगों, तुमने किसको सरेदार खो दिया। ऐसे नहीं चलेगा। पीर से जुम्मा रात 10:03 पर। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। Experience the luxury of Faez Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Faez Sanitary for an elegant lifestyle. हाँ या ना तो कर मैं नहीं सपोर्ट कर रहा, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम सुनना चाहते हैं कि कौन सपोर्ट कर रहा है। एक सेकंड ठहर जाए, सुनेंगे आपकी वक्त पे। कानूनी बात करेंगे तो करिए, आ जाइए, बताइए। एक सेकंड, लेट अस हियर मिस्टर समीउल्लाह बलोच, द पर्सन हिमसेल्फ। जी, सनाउल्लाह बलोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोअज़्ज़ज़ साहिबान। ये आपका ये केस है? जी सर, ये मेरा ही केस है। ये तो लिखा है समीउल्लाह बलोच। Sir, Samiullah Baloch is my brother, and Abdul Karim Nosharawani, I am the aggrieved person because I contested the election against. तो समीउल्लाह बलोच कहाँ है? Abdul Karim Nosharawani, sir, he is my brother because the case is mine. So आप उनके अटर्नी हैं, आप कैसे आप पेश हुए थे क्या? जी हाँ, मैं पेश हुआ सर, बिकॉज मैं एग्रीव्ड पार्टी हूँ। जो मैंने 2002 के बाद जब इलेक्शन हुए, मैं उसकी तफसीलात में बात तफसील ना बता देना, आप बता दें किस ग्राउंड पे आप करना चाहते हैं। मैं ग्राउंड पे सर, ग्राउंड ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स हैं उसके तहत सुप्रीम जो जुडिशल सुप्रीमेसी है उसको मद्देनजर रखते हुए ये ऐसी बातें ना करें अदालत में। जुडिशल सुप्रीमेसी क्या चीज होती है? मैं सर, अगर आपकी इजाजत नहीं, ऐसी बातें ना करें हमसे। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात सुनी थी हमने, अब आप जुडिशियल सुप्रीमेसी का मैंने कॉन्सेप्ट नहीं सुना है सर। ये जो नहीं, देखिए कानूनी बात करें ना, ये ऐसी बातें ना करें सर। ये जो आर्टिकल 62 और 63 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में गुज़िश्ता 50 साल से और बिलखुसूस 18वीं तरमीम के बाद इसमें कुछ तरामीम हुई, लेकिन पर्टिकुलरली 62(1)(f) में तरामीम नहीं की गई। ये टोटल 5 सफ़ात पर मुश्तमिल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत क्लियरली एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स दिए गए हैं हक के नुमाइंदगी के लिए, इख्तियारात के लिए। कहने का मकसद ये है कि सर, जब ये 2013 के बाद से जब ये, अगर आप कह रहे हैं ना 50 साल से ये स्टैट्यूट बुक्स पे है, तो पहले क्यों नहीं कभी कोई डिस्क्वालीफाई हुआ? मैं इस पे आ रहा हूं सर। बात ये है कि सर, ये जो है 2002 के बाद से ज़ेर बहस आया। ये 20 साल से सर सुप्रीम कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट और दीगर कोर्ट्स में ये तफसील के साथ ये ज़ेर बहस रहा है मौजूद, और इसमें 62 और 63 की बहुत ही क्लियरली, केयरफुली, मेटिकुलसली जो है सर इसकी तशरीह की गई है। मेटिकुलसली ऐसे तो ना बातें करें ना आप। सर
पॉइंट पे आ जाएं। पॉइंट पे आता हूं। तो सर जब एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब 63 की जब बात की जा रही है कि वहां 5 साल का तयन किया गया है, क्यों 62(1)(f) में नहीं किया गया? उसकी बुनियादी वजह यह है सर, जब मैं एज ए मेंबर पार्लियामेंट में जाता हूं, जब डिक्लेरेशन देता हूं, वो ओथ है। मैं ओथ में ये कहता हूं कि मैं शहरी हूं, मैंने BA पास किया है, मेरी उम्र 25 साल है। ये जब मेरे खिलाफ जिस शख्स ने कंटेस्ट किया था, जब मैंने उसको कंटेस्ट किया कोर्ट में, उसकी उम्र 24 साल थी। इलेक्शन में क्योंकि उसके पास वालिद के पास BA की क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो उसका क्या हुआ कि उसमें 5-6 मिस रिप्रेजेंटेशंस की, उसमें फ्रॉडरी की, और जो डिग्री है फैक्ट्स पे ना जाए ना। अब ये बता दें इस जगह ही सवाल है आपसे। आप ये कह रहे हैं ना कि ये जो डिक्लेरेशन जो हमें समझ नहीं आ रही सिचुएशन की, वो ये है कि मैक्सिमम झूठ बोला ना उसने, फॉर्म में झूठ बोल दिया, मिस डिक्लेरेशन कर, तो झूठ की सजा ये है कि सारी उम्र के लिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट हो गया। ये लिखा हुआ है आइन। दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं तो अगर कत्ल भी कर दिया, ट्रीजन भी कर दिया, तो फिर भी कुछ टाइम गुजरेगा तो वापस आ सकता है। ये बात रिकंसाइल नहीं हो रही है। सर ये जो केस आपका समीउल्ला बलोच आपके सामने, आप अपना बताएं। मैं अपना बता रहा हूं सर। मैं आपको आप केस को 1 मिनट रहने दें, आप अपना व्यू बताएं। मेरा व्यू ये है सर, बीइंग ए पॉलिटिशियन आप बताएं कि 63 के बाद जब किसी शख्स को सजा होता है तो वो एक स्टिग्मा है, उसके माथे पे एक दाग लग जाता है, वो 2 से 4 साल कैद का गुजारता है, पूरे माशरे में उसकी फैमिली सफर करती है, फाइनेंशियल सफर करता है, मॉरली सफर करता है, उसकी जारी सोसाइटी में उसकी अहमियत और हैसियत कम हो जाती है। उसके बाद जब वो निकलता है तो उसके बाद इजाजत है कि 5 साल के बाद वो जाए, अगर उसके पास गुंजाइश है वो आपके पास जाए। लेकिन इसमें सर जब आप एंट्री पॉइंट पे झूठ बोलते हैं, जब आप दाखिले के वक्त नहीं, जैसे आपने कहा, देखिए एक पॉइंट लेते हैं, 24 साल का था, आपने कहा कि उस वक्त वो 25 साल का नहीं था। 24 साल का तो सिर्फ एक ही पॉइंट होता, उसके डिक्लेरेशन पे आपने उसको चैलेंज कर दिया, वो प्रूव हो गया कि 24 साल का है। आपकी राय में वो फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। इज इट योर पॉइंट? विद योर ऑनरेबल परमिशन सर, अब वजह क्या हुई उस वक्त? पहले ये मेरी वजह, यही पॉइंट है आप सर। मेरी ये पॉइंट उस वक्त इसलिए सुनी जब नहीं गई, वो शख्स दाखिल हो गया, उसने चेक बैरियर क्रॉस कर लिया, वो झूठ के बावजूद वो बलोचिस्तान में वजीर दाखिला बना, जो अभी से पहले केस। फिर जातियात पे ना जाइए। नहीं सर, हम जातियात को छोड़ दीजिए, हम आईनी नुक्ते की बात कर रहे हैं। हो सकता है बहुत बुरा आदमी है, हम उसमें नहीं जाना चाहते, तो आप जातियात को छोड़ दीजिए, आइन की बात करें। आप पार्लियामेंटेरियन है ना, हम जातियात पे बहुत सकता है अच्छा आदमी बुरा आदमी, वो हमारे सामने बहस नहीं हमने करेंगे, क्योंकि हम एक जनरल प्रिंसिपल तयन करना चाह रहे हैं। अब सनाउल्लाह बलोच साहब देखिए, मैं आपको बता जो हमारे लिए कंपैरिजन में प्रॉब्लम आ रही है ना, एक तरफ 63A में आप जितना मर्जी क्राइम कर दें, आप कुछ अरसा सजा काटें, 5 साल गुजारें तो वापस आ जाए। हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि सिविल डिक्लेरेशन में सजा नहीं है, कोई सजा तो उसने नहीं काटी, सिवाय ये सजा उसने काटी कि वो वाला इलेक्शन मिस हो गया उसका। अगले इलेक्शन में तो वो आ सके ना। अब ये कहना कि अगले इलेक्शन में भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ये हमें समझ नहीं आ रही कि सिविल उसने झूठ बोला, झूठ की सजा आपने दी कि तुम इस नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए तुम्हारे, तुमने इलेक्शन नहीं लड़ा, सजा मिल गई ना। जो क्रिमिनल साइड पे उसको वैसे सजा मिल रही, सिविल साइड पे ये सजा हो गई। अब आगे चले ना, अब वो क्या उसने जो एक झूठ बोल दिया, मिस डिक्लेरेशन कर दी, अब वो सारी उम्र कैसे? दूसरी तरफ फिर तो हो ना, आइन में हर जगह लिमिटेशन है, टाइम की स्टोरी है हर जगह, तो फिर इस जगह भी तो कुछ होनी चाहिए ना। अजीब लगा। मैं इस हक में हूं कि 232 अभी जो जून यार, मैं इस हक की बात छोड़ देना। अगर देखें, अच्छा एक्चुअली आई एम स्पॉटिंग इज दैट मखदूम अली खान, कैन वी रिक्वेस्ट यू टू, since Mr. Makhdoom Ali Khan has written on the Constitution, I don't know if he's involved in any case before us. Are you in these matters? Huh? Yes. My lord. Which case are you in? I have filed a CMA 6 of 2024. For whom? In favor of disqualification or lifetime or not? My lord, not in favor. You're not in, why? Who have you filed it for? For Mr. Jahangir Khan Tareen, my lord. Okay. Now, one thing which nobody has attended to yet, at least one way of interpreting the Constitution, is what the original Constitution said. And this Constitution has been, I don't know what's the correct word, changed or ravaged from time to time, what you want to use it. Can we read the original Constitution as it was enacted in 1973? My lord. And see what
the Constitution then said. My Lord, I will read that provision to your Lordship. Would you like to do it, or shall we ask the Attorney General to do so? As your Lordship pleases, the history is... No, we were thinking of appointing you as amicus, but you are representing a party, so anyways, let's... as your Lordship. Pardon, 62, do you have the original Constitution? Yes, my Lord, I have, and the history is traced in Samiullah Baloch. No, we want to read the actual text. Yes, my Lord. The text is there. 85. Yeah, we have it, my Lord. Qualifications for membership of Parliament. Can you come to one of the other mic? My Lord, benefit of... My Lord, Article 62, there used to be only 3 qualifications. 1, he is a citizen of Pakistan. Read the whole article. My Lord, a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Parliament unless he is a citizen of Pakistan. B, he's in the case of the National Assembly not less than 25 years of age and is enrolled as a voter in any electoral roll for the election to that assembly. C, he's in the case of the Senate not less than 30 years of age and is enrolled as a voter in any area in a province, or as the case may be, the federal capital or the federally administered tribal areas from where he seeks membership. And D, he possesses such other qualifications as may be prescribed by Act of Parliament. So these troublesome provisions were not there? No, my Lord. When did they come into? My Lord, by Presidential Order number 14 of 1985, which is also called the Revival of the Constitution Order. This is General Zia. General Zia, when the martial law was coming to an end and partyless elections were soon to Is it ironic that a person who violates the constitution of the country puts in these conditions? I find that a bit troublesome, isn't it? Yes, he after was he of good character? If he violates the oath that he took to uphold and protect the Constitution, and he destroys the Constitution, it's very ironic for me that he inserts a good character, knowledge of Islamic teachings. I wonder which knowledge of Islamic teaching mandates judges to be sent home because they don't swear an oath of fealty to the martial law administrator. What is your view on that? My Lord, these are, with great respect, all these provisions which have been added by the RCO or the Presidential Order 14. Was he non-profligate? My Lord, these are matters which I would say... Yeah, we want your answer on this. My Lord, these are matters for divine judgment. These are matters for divine judgment. You mean to say matter of treason is for divine judgment? My Lord, no. And treason is not an issue, but if we come to treason, then in martial law is admitted? Yes. If it comes to an act of treason, then in that particular case... Do you think he committed treason or not? My Lord, in your Lordship is talking of 1977. You're talking about, yes. Your Lordship will then have to examine it. You know, we are asking your opinion. My Lord, I would be bound by the judgment of this honorable court. We are asking your opinion. My opinion is different, but the judgment of this honorable... Share your opinion with us. The judgment of this honorable court in Begum Nusrat Bhutto's case takes a different view. चले आप नहीं बताना चाहते रहने दें फिर. My Lord, my view... चले बाकी पढ़ लेते 63. तो ये D तक था. There was no present D, present E, present F and present G. Yes, my Lord. The D... and 63 was also pretty succinct. Yes, it was, my Lord. 63 was also very limited. कैसे उसमें हम पढ़ टाइम यही समय ये सारे नहीं ला सकते ना My Lord, 63, a person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of Parliament if A, he is of unsound mind and has been so declared by a competent court, or B, he is an undischarged insolvent, or C, he ceases to be a citizen of Pakistan or requires the citizenship of a foreign state, or D, he holds any office of profit in the service of Pakistan other than an office declared by law not to disqualify its holder, or E, if he is so disqualified by Act of Parliament. So it was pretty straightforward and simple. It was. And RCO kind of molded the constitution. Yes. RCO changed it in two respects. It brought in these qualifications and added a whole host
of disqualifications as well. By a person who was of sagacious, righteous, non-profligate, honest, and good character. Yes. Yes. But the point is, 18th Amendment stamped on it. You see, my lord, 8th Amendment stamped on it. No, देखिए, and then 18th Amendment. Mr. Makhdoom Ali Khan, at least now I will speak for myself. I don't know. Wherever this is one way of interpreting the Constitution, and I've held it in a judgment or two, that wherever there is problem areas or difference of opinion or two interpretations possible, at least I've chosen the one interpretation which found mentioned in the original pristine constitution chosen by the directly elected representatives of the people and not martial law administrators. Why are you so scared of martial law administrators to utter these words, Mr. Makhdoom Ali Khan? My lord, may I submit that this is also the jurisprudence of this court. In Al-Jihad case, Mr. Justice Ajmal Mia took the view that if there is a conflict or tension between two provisions of the Constitution, one which was enacted at a time when the Constitution was in abeyance and other at the time when the Constitution was in full force, it is the latter which will then prevail, and that view has been reiterated in Samiullah Baloch, though the principles drawn from it thereafter are different. So what your lordship is observing. So where is it mentioned in Samiullah Baloch? My lord, in the Samiullah Baloch case itself. No, I just want to read that part. Yes, my lord. Your lordship will see the constitutional principle is identified in the Samiullah Baloch case itself at page 435. Page 435. At this point that you are saying? Yes, my lord. This point is there on page 435. This is PLD 2018 Supreme Court 405. Which paragraph are you reading? Paragraph 22. If your lordship will see, there are a number of judgments cited, and then it says reference by the President, PLD's 1957 Supreme Court 219 at 235. As such, the Constitution must be interpreted as a whole because it is an organic document that is meant to apply to the changing circumstances of time and space. Consequently, each provision of Constitution or part thereof has purpose, meaning, and integral place that must be understood, acknowledged, and applied harmoniously. It is only when a conflict between two provisions of the Constitution is irreconcilable and one of such provisions was inserted when the Constitution was held in abeyance, then the provision which was made part of the Constitution during the period of its abeyance would yield. But would it apply because after the 18th Amendment having stamping it, so it's not really, that was a democratic dispensation at that time. My lord, it was, but your lordships prior to this also in Al-Jihad's case took the view that in spite of the fact that whatever General Zia had done had been validated to a large extent by the 8th Amendment to the Constitution, this honorable court took the view that, and that was in particular, my lord, in relation to a provision where a judge of the High Court declined to go to the Federal Shariat Court and was as a result sent home. Their lordship took the view, particularly Mr. Justice Ajmal Mia, that this provision was inserted at a time when the country was going through a period of constitutional abeyance. No doubt it was validated by the 8th Amendment, but when we examine it and juxtapose it with other provisions relating to judiciary, this having been added at the time cannot be allowed to hold sway, and that is why their lordships held that a judge of the High Court cannot be sent to the Federal Shariat Court against his will, and if he refuses, will not cease to hold the office of a judge of the High Court. So, in spite of that, this has been the jurisprudence of this honorable court, that in spite of the validation. Mr. Makhdoom Ali Khan, but would you put validation at par with an original enactment which has been thought about, carefully considered by every member of parliament? A validation was also a bitter pill for the parliamentarians to swallow. If you don't validate, I continue. So it may be that, okay, we are getting something, is better than nothing, let's at least get on with it. But we are now faced with a problem
So simple validation, when the original constitution said something else, if there are two possible ways to interpret something, and more so when what has been added is very ambiguous. I don't know why these vague words were introduced. You could have simply said A, B, C, D, like every other thing is factual. Either it's a yes or it's a no. Are you of good character? Please don't answer this question. But which person would say this? I mean, it would be a very audacious person who would say, I'm honest, Ameen, and everything. And then probably he will be making other claims which will be totally not permissible. So simple validation is a bitter pill which has been swallowed from time to time to get democracy back on the rails. Would you not agree with that, since we consider you a constitutional expert, to consider validation at par with a constitutional provision, or it has to be read in the context of, because this judgment also says in space and time. The space then was dictatorship. Either you continue another 10 years of a dictator or get some sort of a diluted form of democracy, get us back on the rails, whichever is better. So probably the parliamentarians, we should not always condemn the parliamentarians. We should see the difficult circumstances that they work under. I mean, we should respect them. And what would you have done? Let's put yourself in the position of parliament, make yourself a parliamentarian then, that you would, validate something which you may not be very happy with, but at least get the business back on track. How would you personally attend to it? My lord, my respectful submission is that though the earlier two judgments which I have just identified by this honorable court do not put it in the terms that your lordship has, but that was probably at the back of their mind when they said that an amendment made during the period of constitutional abeyance, if it is in conflict with or cannot be reconciled with the provision originally enacted in the Constitution, then the latter will prevail. So obviously this honorable court has not treated the validation at the same level as the original Constitution, recognizing all the difficulties which your lordship have articulated, but not articulating them in this particular manner. Otherwise, my lord, if any amendment made to the Constitution, eventually when made, stands on the same plane as any other constitutional provision, but your lordships have held that we will distinguish between constitutional provisions made during a period of constitutional abeyance. What's your main argument? Is this your mainstay of your argument? My lord, my main argument in this particular case would be that insofar as when your lordship examines Article 62 and 63, because some of these amendments, as your lordship has just now noticed, came in at the same time, there is a relationship between the two. And with great respect to this extent that Samiullah Baloch says that 62 and 63 have to be looked at through different lenses, it is with great respect incorrectly decided. Because when your lordship looks at 62 and 63 and the amendments came about at the same time, 62F, which your lordship is looking in particular, which says he's sagacious, righteous, non-profligate, honest and Ameen, there being no declaration to the contrary by a court of law, and your lordship examines it with 63(1)H, he has been on conviction for any offence involving moral turpitude, sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years, unless a period of 5 years has elapsed since his release. They are to be read together. I mean, that is dependent upon 62 is dependent upon 63. 63, and I would go to the extent of saying that when your lordship looks at G, for instance, he has not, after the establishment of Pakistan, worked against the integrity of the country or opposed the ideology of Pakistan. It has to be related to H, which says he has been on conviction for any offence involving moral. So what does that mean? I mean, where does that leave these provisions 62? My lord, what's the effect? My submission would be that unless there is a conviction, and that would be the declaration I would be seeing, not at... So what would be, what are these clauses?
they go? My lord, if there is no conviction, then in the case of D, F, E and G, for example. My lord, D and E and F probably all will have to be related to H. 63(1)(h). F actually talks about a declaration. D, E, and G don't. They could be. One could argue that because there is no third-party declaration, we can go into conviction area. But where do we take the declaration part? My lord, declaration. Now, if your lordship looks at it in terms of section. One thing which immediately comes to mind is section 42 of the Specific Relief Act, which talks about declaration of a legal character. Now, this cannot be that kind of a declaration because, as your lordships have repeatedly observed, a negative declaration is impossible to obtain. Then your sometimes permissible, negative declaration is permissible sometimes in some events that can be granted by the court. There has been some revisitation or some revisitation of Alvi Sons, but otherwise that remains good law. Then if your lordship looks at 199, that also is talking of declarations being made by this honorable court, but that's in a completely different context. That is only. So then what do you make out of this declaration for a court of law? My lord, I would say that the term is not used specifically in the section 42 sense of the term. Maybe it's a constitutional declaration. It's a constitutional declaration, and that the declaration which the constitution is envisaging is there has been a conviction already under 63(1)(h). And then there is this gateway. He cannot file his papers before the returning officer because at that time the returning officer may refuse to accept them. But the anomaly which arises when your lordship looks at 63(1)(h) in particular, and G and H both, actually, when your lordship looks at it, for instance at H, he has been on conviction for any offence involving moral turpitude, sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years, unless a period of 5 years has elapsed since his release. So even a conviction which is followed by a sentence of 1 year 11 months does not lead to disqualification even of 1 day. Fair enough. So that's understood. So therefore the connection which Samiullah Baloch makes between a person being an ex-convict suffering all his life, the stigma that he's a convict, is really not what 63(1)(h) is all about. 63(1)(h) is all about sentencing. If the person has been convicted and sentenced till the rising of the court, he's not disqualified at all. No, but there is a difference, you see, the opening paragraph of section 62 and 63. They need to be read and harmonized. A person shall not be qualified to be elected or chosen. I mean, if you will read 63, a person shall be disqualified from being elected or chosen. So वो जो उसमें चीजें लिखी हैं वो आफ्टर कन्विक्शन है कि अगर कोई कन्विक्ट हो गया है, उसकी सजा खत्म हो गई है, तो इस इतने पीरियड के बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है. To be elected and from being elected. This is the correct. But if your lordship may graciously be pleased to look at clause 2 of 62, these words are used very loosely. The disqualification specified in paragraph D and E doesn't talk about qualifications. Article 62. But both are different situations. No, my lord, Article 62, clause 2 is talking of disqualifications under 62. It's not talking of qualifications. So this is very loose language which has been used. Practically interchangeable. Interchangeable language. Because one question which I have. DE does not have the wording there being no declaration to the contrary by a court of law. My lord, yes. When does D, E and G kick in? How can they ever kick in actually in any court of law? They cannot kick in. Or they're meaningless words. My lord, they're just guidelines for they are exhortatory
perhaps for the guidance of the electorate, that watch out for candidates. So first of all, you are saying that they are of no, there are no consequences which follow with D, E, and F. D, E, and G. They will, my lord, D, E. But ideally, the same wording should have been used. There being no declaration to the contrary by a court of law in D, in E, and in G. My lord, these wordings are only found mentioned in F. My lord, these were added in F under the 18th amendment. These words were originally not there, and the reason for adding it appears to be, as the Attorney General identified, that under F, returning officers had started disqualifying people by saying, "Aap chautha kalma zara suna dijiye." आप चौथा कलमा जरा सुना दीजिए, इस तरह की चीजें. They can still do that in E. They can. They very much That's can. the problem. You see, what we don't understand is D, E, G are there, and what do we? They're not executable as such. How could we? So I mean, I myself read them as for the gatekeepers, as the voters, and maybe they keep that in mind and not vote because it's a subjective decision. My lord, but cannot be enforced in a court of law. My lord, that is what in the case of Ishaq Khan Khakwani, one of the learned judges, as my lord Mr. Justice Faez Isa identified in Sheikh Rashid's case, took the view that no disqualification can really take place over here. These are very open-ended words. And your lordship points it out in your dissenting opinion in Sheikh Rashid's case, where your lordship identifies the 7 questions which are to be dealt with by the court, because that's... But Mr. Makhdoom, the problem is that I'm facing is you can't attribute redundancy to the Constitution. My lord, yes. Or to any law for that matter. And then secondly, you can't read into the Constitution. So the time frame, suppose if one were to say that this F applies for that election, that particular election which the nomination papers are rejected, and it ends. Now that's not written. So how, I mean, that's the worry that I have. How do we read in a time frame into it? Either we read them with 63 and create a larger timeline concept. How does it work? Or go on the validation point? And if I may just add what my learned brother has just said, what I've understood from your submission is what you are saying, Samiullah Baloch does not accord with the Constitution. That's the submission. That's your argument. Can we not say that Samiullah Baloch for its time was good, valid judgment? However, since the lacuna has now been provided by Parliament, and they've given a 5-year time. This half-hourly clock is brought to you by Advanced Hair Removing Formula, Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream. Was decided at a time when we didn't have this newly amended law. At that time, the law did not, and there was no timeline set. The Samiullah Baloch case was decided in a particular manner. The legislature has now filled that gap. In Samiullah Baloch, it was observed that there is a declaration. Until such time that the declaration stands, then the person would remain disqualified or will not be qualified. Now the legislation says that the period of such a declaration will not go beyond 5 years. Okay, now I will ask you the supplementary question, and I knew you would come here. Thank you. Now can I put it to you that section 232(2) is unconstitutional? Can I put this to you or not? My lord, that is a very valid question. Of course, your lordship can put any question. Yes. My lord, because one view can be, which is probably in my opinion, definitely the correct view, that where this honorable court has interpreted a provision of the Constitution and made a declaration about a provision of the Constitution, then
on the doctrine of legislative repeal that constitutional interpretation can only be undone by an amendment to the Constitution. And that brings us to the question that how could the Constitution be controlled by a sub-constitutional legislation? The Constitution is talking about a declaration, gives no time frame. Could we, through an act of Parliament, start adding things to the Constitution? We can't do that. My Lord, I would say that the declaration made by the Parliament is in consonance with Article 63(1)(h) of the Constitution, which provides a time frame for the kind of offences which will fall under F. Because that involves conviction, that's a criminal case. But if you look at 63P, 1P or whatever it is, the P, the last one, the Constitution itself allows that through an act of Parliament you can regulate this provision. And wherever it's so required, it's given. So, just taking it a little more, suppose, let's imagine Samula Baloch was not decided, and we are deciding it today. My Lord. Just for the sake of, to take the argument a bit forward, and we, I mean, let's assume everyone agrees with me, and we say since 62(1)(f) does not provide a time limitation for disqualification, therefore let us be guided by other provisions of the Constitution, including 63(1)(h) and (g), where it provides for treason, 5-year disqualification. So let us let this disqualification be for 5 years. Is it sound reasoning or not? My Lord, it is, because your Lordship is then virtually interpreting the two provisions together. When your Lordship interprets... So at the end of the day, it depends on what is in my mind. Are you understanding? Yes, my Lord. Is the Constitution so malleable that I can do whatever I want to with it? My Lord, if 63(1)(h) was not there, let us assume there was only 62(1)(f), and if the 18th Amendment had not added the words which have been added, which is declaration to the contrary by a court of law, then 62(1)(f) would have been a provision which really provided no timeline. And if a person was declared not to be qualified under 62(1)(f), then the question would be for how long? My Lord, the question can be for that term that he has been elected, or he can be re-elected immediately. My Lord, for instance, the only other constitution that I have been come across which is a provision similar to that of Pakistan, where you cannot be elected to the parliament if you are the citizen or have acquired the citizenship of another country, is that of Australia. And the Australian High Court has dealt with this issue. No other constitution that I am aware of deals with. American Constitution, you have to be an American... You have to be an American citizen, but it does not say like our, my Lord, 63(1)(c) says, or acquires the citizenship of a foreign state. So a dual citizenship over here disqualifies. In the Australian Constitution also, a dual citizenship disqualified. But the lordships over there have taken the view that if the person then steps down, abandons that citizenship, he can come back in tomorrow again. And there they have also taken the view that if he has applied for his citizenship to be renounced, then the constitution of our country will not be contingent on the delay or speed of the legal processes in another country. He has done the best he can, and therefore they have said he can continue to be in office. Why were you disqualified? My Lord? Why have you been disqualified? From the petitioner. The petitioner. Yes. Petitioner was disqualified. Your client. My Lord, my client. Yes, I was coming to that. My Lord, he has been disqualified on the ground that he had created a trust for the property called Hyde House, and his defense was that Hyde House was a trust. The misdeclaration in the nomination form, is that the allegation? Yes, but his case was that there was no misdeclaration. No, that's a different thing. I just want to know what was the reason. So in all these cases, if you look at all these cases that where 62(1)(f) was invoked, the
the misdemeanor is misdeclaration, or maybe they have not given. Misdeclaration generically would be it, and misdeclaration in the worst form taken could be brought into H. Worst form, moral I mean, कहीं हो सकता है innocently भी हो, लेकिन चलें worst form में ले लें, it is moral turpitude, and that provides for 2 years plus 5 years, so that's 7 years. So even if suppose a person did not get convicted because there was no case filed, worst to worst, if the case was there, he would be out in 7 years. So 7 years period could be easily read into the F clause, because that's the only natural corollary. I mean, it doesn't make sense otherwise. Yes, my lord. And again, would there be any incident coming out of F which will go out of H? My lord, मतलब आपने नई केस बनाया, सपोज मिसडिक्लेरेशन हुई, उसके खिलाफ किसी ने कोई क्रिमिनल केस ही नहीं किया, अगर हो जाता तो वो 2 साल वो होता और फिर उसके बाद 5 साल होता, यही है ना? Is there any situation in F which would go outside H? My lord, not that I can think of. No. Do you think the words in F, it says, it doesn't end by a country by a court, it says court of law. My lord, yes. Is a court of law different from a constitutional court? Because it could have stopped at the word court. So I just want to know, does the of law add anything or doesn't add anything? My lord, of law adds in the sense that probably the returning officer will not have this power. The returning officer is not a court. I'm just thinking in terms of Section 9 courts under the CPC. Are these court of law Section 9 courts or court of law? Because it should have said, it could have ended by saying by any court. My lord, over here, are we distinguishing between the constitutional court and a civil court of competent jurisdiction, or we are not? It's meaningless, irrelevant. This honorable court and your lordship yourself have held that over here the word court of law means a court of plenary jurisdiction. In Panama 1, which was not subsequently followed in Panama 3, this honorable court. What do you mean by Panama 1 and Panama 1, my lord, was the first case which was decided 3-2, and Mr. Justice Ijaz Afzal Khan, writing for the majority, said that court over here means a court of plenary jurisdiction. Meaning Section 9 court. Section 9 court, a court which will take evidence, which will examine the issues where a trial takes place. Or it could be civil or criminal. He doesn't make that distinction, and I would submit that if your lordship have to, then how did that view change? Without mentioning what they have done in Panama 2 and Panama 3. Is it referred to Panama 1 and Panama 2 and 3, this aspect? No, my lord. Your lordship notices that in your lordship's judgment in Sheikh Rashid's case. Actually, that was not a judgment, it raised a number of questions. Yes, it raised a number of questions. Yes. But your lordship will see that even after Samiullah Baloch, different tests have been applied. The author judge of Samiullah Baloch was also the Chief Justice of Pakistan in Faisal Wabda's case, and has taken a different view without any reference to Samiullah Baloch. Where is that view? My lord, that is reported. Repentance was that he did not contest the election, so there was a repentance. My lord, that is Muhammad Faisal Wabda versus Election Commission of Pakistan and others. PLD kya? My lord, this is 2023 SCMR 370. My lord, 370. My lord, I have put these cases together in a bundle for ease of reference of your lordship. And this sir, मैंने और पैसे ज़ाया करवाए आपके? Sir, ये आपके जो 62(1)(f) पे judgments हैं. ये पहले बताएं ये वाला केस. Yes, sir. It is the last tab. It is tab 20. So you're a member of this? Yes. My lord is one of the members. Yes, his lordship is one of the members. You said it as if it was something wrong. Can you read the relevant portion? My lord, yes, paragraph 4, it's a 2-page judgment really. Paragraph 4, page 373. The petitioner states before the court that he regrets his claim of renunciation of the US nationality at the time of filing his nomination papers for the election of NA 249 Karachi on 7/6/2018. He further states he had then initiated a process for such renunciation, but the certificate of loss of nationality of the US was issued to him on 25th June 2018.
He admitted that he was disqualified from contesting the election under Article 61(3)(1)(c) of the Constitution on the date when he had filed his nomination papers for the election of NA 249 Karachi, and that his affidavit filed in with the nomination paper thus contained an erroneous statement which he regrets. In order to demonstrate his good faith in remorse for his mistake, he undertakes that he will resign from the office of the member of the Senate to which he was elected. In view of the said statement and undertaking of the petitioner, we are of the opinion that we need not proceed further in the matter in the peculiar facts and circumstances of the case. And if your lordship may see the last sentence, which is the last 3 lines, it is clarified that the petitioner shall not be considered disqualified in any subsequent election on the basis of the instant. The repentance is that period, that particular election. Yes, and so, but this is after he enjoyed the full tenure of the Senate. Yes, yes, and then he resigned. He resigned. But एक चीज देखिए, सम्युला बलोच में paragraph 6 में the concept of repentance is mentioned. Yes, my lord. But I don't find a finding on it then. No, there is argument of counsel finds mention on repentance. My lord, yes. But then it is, though the judgment talks about Islamic injunctions, this concept is not discussed unless I've missed it. No, it is not discussed, my lord. That judgment is also on tab 7 of this very bundle. So are you repentant? So, Mr. Makhdoom, we could look at it like this, you see. Are you repentant or you claim you've done no wrong? My lord, at the moment you can only be repentant because your case is over. My case is over, yes. I presume you are repentant. So one reconciliation. Reluctantly repentant. My lord, his case was that I made no misdeclaration. My children had declared it as their property. So one reconciliation of 62(1)(f) with H could be that if there is a misdemeanor of misdeclaration and no criminal case is made out, then he just misses out on the election and the matter comes to an end. Yes. But if you want to take it further and you file a case against him which is criminal, then H kicks in and you go through a conviction and 5 years. So there's a 7-year period there and there's an election period here. Yes, because why didn't you not book him in any criminal case? Because you could do that. For any misdemeanor, you could have done that. If you don't let him go and you don't take criminal proceedings, then there has to be some mechanism, because if you take criminal proceedings, the mechanism is 7 years. But if you do not take criminal proceedings, then there must be some way out also. Because it's short of that, because nobody bothered to take the person on for that misdemeanor. So, I mean, that's this is Saudum Ali Khan, but I think, can we go back to Faisal Wavda's case, please? My lord, yes. You said Samula is not mentioned. Samula is mentioned there. Is mentioned. ये जरा उससे पहला वाला पढ़ने, therefore. बिल्कुल उस paragraph में mentioned. It's mentioned, but not followed because Islamabad. Just पढ़ दें जरा सा. Therefore, it was concluded. My lord, उससे अगर जरा ऊपर आप देख लें, the Islamabad High Court found that the petitioner was disqualified pursuant to the case reported as Speaker National Assembly of Pakistan versus Habib Akram for submitting a false affidavit, hence no declaration was required. Therefore, it was concluded that the consequences given in case reported as Samiullah Baloch and others versus Abdul Karim Noshirwani would follow by finding that a formal declaration by a court of law was not required to disqualify the petitioner under Article 62(1)(f) of the Constitution. The impugned judgment has in its para 11, 12 and 13 therefore misconstrued both Habib Akram and the Samiullah Baloch case. So they say it's been misconstrued, and resultantly the impugned judgment is legally not sustainable. How do you reconcile the two? This judgment and Samiullah Baloch? My lord, if Samiullah Baloch was... how do you reconcile the same two judgments by the learned same judge? My lord, my submission is that if Samiullah Baloch was strictly followed, there was no way out but to disqualify Mr. Faisal Wavda and Islamabad High Court. For life, because Islamabad High Court had correctly decided the case. He will be disqualified because of his corrupt practices. Who, my lord? The person who gives false statement. Yes, my lord. Corrupt practice defined in section 167 of the election laws. My lord, yes. But for that declaration, there must be criminal proceedings as provided in section 174. Yes, penalty for corruption or corrupt practices.
उनको सजा होनी चाहिए कोर्ट से। जी जी, कोर्ट मींस क्रिमिनल कोर्ट। Your Lordship is absolutely there is no right. declaration from the court, can person be still called as a corrupt practice? My lord, that is my submission, that 62(1)(f, the declaration which they're thinking about is the declaration under now the Election Act 2017, previously the Representation of People Act 1976, and the words used over there were false statement and false declaration. Yes. So punishment for punishment, the court, criminal court, there must be a fair trial. Article 10A. Thereafter, if the court declares that the person has committed an act of corrupt practices, that is why your Lordship will have to read 62(1)(f. Once that declaration is made, then under 62, if somebody shows at the time of submission of papers that this person is disqualified, is not qualified to be elected, his papers can be rejected. Whether in 62 period of disqualification can be made or not. My lord, my humble submission is... Are you also in this case, Mr. Mohammed? Yes. Are you also in this case? My lord, I'm assisting Mr. Maktoum Ali Khan. It's the same matter, my lord. Okay, sorry. I was counseling. We wanted to hear the other version as well. Because all of you seem to be on the same side in a way. So we wanted better articulation of the contrary viewpoint. Who would canvass that viewpoint? Anyone in the court who will canvass the contrary viewpoint with some level of seriousness? Except Sana Baloch, everyone. Sir, if you allow me just... No, anyone in this courtroom who wants to canvass the contrary viewpoint with the level of seriousness, we would like to hear. Because you're an Attorney General and most of them are just saying what you are on the same side. My lord, I would like to submit. Kaun bol raha hai? From Lahore. Khurram Raza from Lahore, my lord. Okay, then you please make yourself attend here. We don't want to hear important cases on video link. If you are serious about this case, come to Islamabad. My lord, I will. Someone who has the opposite viewpoint, senior counsel, Mr. Maktoum Ali Khan. My lord, the contrary viewpoint. As in all the respondents. Where is Mr. Shoaib Shaheen? He was here in the morning. Would he be canvassing the contrary viewpoint? Shoaib Shaheen sahab chale gaye? Acha. Mr. Babar Awan supported the lifetime ban in the Samila Baloch case, so he might be a कौन बोल रहा है? आप किसको आप किस पॉइंट मिस्टर कयूम no, what about yourself? What about yourself? What about yourself? Which view are you supporting? Lifetime ban? My lord, I am supporting the law. I am against lifetime ban. अच्छा, आपके साथ जो खड़े हैं वो क्या कहते हैं? वो अपोज कर रहे हैं। वो अपोज कर रहे हैं। आप आइए जरा इस्लामाबाद, जरा अपनी आप हमें दीदार कराइए. We don't want to miss any valuable word uttered by you. So please be here. We will now be adjourning this case, and we would like to maybe we appoint some person from the other side, if we can say. आप बल्कि अगर आपको कोई और सपोर्ट कर रहा है उसको भी साथ लेके आए लाहौर से. बस भर के लेके. My lord, there is a नंबर में कौन है केस में? सुबह का केस था ये सैयद असगर हुसैन सब्जवारी.
ये केस है काशिफ महमूद का। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये आपने सुबह का केस, ये इशू है आपके केस में, आप लाइफ टाइम बैन सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? नहीं जी, मैं तो ये कहता हूँ कि नहीं, सिंपल बता दें, लाइफ टाइम बैन और 5 ईयर बैन और नो बैन। लाइफ टाइम बैन। सो माशाल्लाह आप खुद हैं, तो आप आते ना सामने, हम आप बार बार पूछ रहे हैं। नहीं देखें, हमें मावनत चाहिए ना, कि अच्छी बात है कि आप माशाल्लाह सीनियर वकील, हम वी वर लुकिंग फॉर सम सीनियर काउंसिल टू कैनवस द अदर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, सो वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। खैर, आपने सारी बातें तो सुन ली, आप बैठे हुए थे ना सुबह से? नहीं सुन ली ना सारी बातें। हम आज अजर्न करेंगे, अब तो 3 बज गए, तो ये लोग भी आ जाएं, शायद इनके लिए कल मुश्किल हो आना, परसों पे रख लेते हैं फिर ये केस। ठीक है। और अगर आप कोई एनीवन कैन सपोर्ट, आप किसका नाम तजवीज करें जिसको हम माइकल बना दें, क्योंकि दूसरा कैनवस करे व्यू पॉइंट। माइकल्स तो खैर न्यूट्रल होते हैं, मगर क्योंकि वी हैव द सीनियर काउंसिल हियर ऑलरेडी, द प्रेसिडेंट इज हियर, मिस्टर मखदूम अली खान इज हियर, सॉर्ट ऑफ नंबर ऑफ अदर अटॉर्नी जनरल इज हियर, आप भी इधर हो। सिद्दीकी साहब हो सकते हैं। किसी केस में अहमद या सलाउद्दीन। Case, Mr. Munir Malik was amicus. He was amicus then. We saw these. There were a number of Mr. Asma Jahangir was there. Munir Malik was amicus then. Whether he will be, how well he is. Review links in Samiullah Baloch. No, but I thought the respondents would be opposing this. The respondents in these cases would not be opposing would be supporting the lifetime ban. Mr. Maktoum Ali Khan, you won everyone over. All the respondents are now against the lifetime ban. I don't understand. So in fact, my lord, the opposing side, they were initially were of the fact that it must be a lifetime. Prior to that, in 2018, we are those who are making out that we should not be given a lifetime here for the 5 years. So only one thing is this, my lord, the whole scenario, I want to just add one thing, that is that a declaration and the conviction, these are the 2 words which are necessary to be. Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, Aloe Vera Gel और Vitamin B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion। जैज के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB YouTube। अभी जैज वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में, और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज सुपर 4G। हेलो हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस कंडीशनर, इसमें मौजूद मिंट और टी ट्री ऑयल डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करें और बालों को रिफ्रेश। मीट द न्यू यू। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, फेस रहे फ्रेश, क्लीन और ब्राइट। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, लेट योर फेस ग्लो। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। Golden Pearl White Beauty Cream with added super active serum, glutathione, alpha arbutin और niacinamide से dark spots gone। अब सबको मिलेगा bright glow मेरे जैसा। Golden Pearl White Beauty Cream, love your skin। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। जैज के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB YouTube। अभी जैज वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में, और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज सुपर 4G। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, Aloe Vera Gel और Vitamin B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन
पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। अब हेलो हेयर हर्बल शैम्पू के साथ अपने बालों को बनाएं थिक एंड स्ट्रॉन्ग, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में। गोल्डन पर्ल हेलो हेयर हर्बल शैम्पू, बाल मजबूत पॉकेट फ्रेंडली। स्टार्ट कर रस्ते घटाने वालों को, वतन चलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, फेस रहे फ्रेश, क्लीन और ब्राइट। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, लेट योर फेस ग्लो। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। हर दिन को खुद से स्टार्ट कर, हर दे तू उजाले रात पर। स्टार्ट कर स्टार्ट कर खुद को तू वतन का पार्ट कर। स्टार्ट कर रस्ते घटाने वालों को, वतन चलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, फेस रहे फ्रेश, क्लीन और ब्राइट। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, लेट योर फेस ग्लो। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। Golden Pearl White Beauty Cream with added super active serum, glutathione, alpha-arbutin और niacinamide से skin extra bright. Golden Pearl White Beauty Cream, love your skin. दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन, एलोवेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन, एलोवेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन। जैज के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB यूट्यूब। अभी जैज वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज सुपर 4G। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। हो स्टार्ट कर हर सुबह हो खुद को स्टार्ट कर। सेल्फ रिस्पेक्ट कर, खुद को तू हमेशा स्पार्क कर। स्टार्ट कर तेरे ही दम से तो चलती है वतन की जिंदगी। कर तू खुद चार्ज है, भरती है हर एक में रोशनी। हर दिन को खुद से स्टार्ट कर, हर दे तू उजाले रात पर। स्टार्ट कर खुद को तू वतन का पार्ट कर। स्टार्ट कर रस्ते घटाने वालों को, वतन चलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच इस वक्त नाअहली की मुद्दत के तयन करने के हवाले से समाअत कर रहा है। सिर्फ प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने रिडंडेंट कर दिया है आर्टिकल 63(1)H को, जो हमने अभी बात में सुन लेंगे। आपने जो कंसाइज स्टेटमेंट दिया, नंबर क्या उनका? माय लॉर्ड, उसका मेरा नंबर है जी 8, CMA नंबर 8 है माय लॉर्ड। और इस पे केस लॉ भी माय लॉर्ड मैंने सारा जो मैंने कोट किया हुआ मैंने उसकी पेपर बुक्स भी बनाई है माय लॉर्ड। आपकी CMA कौन सी? Mine is 6 my lord।
So what we do today, we'll observe loudly, and that I'm sure will be recorded. If anyone wants to canvass the contrary point of view, not to come and make a speech, but attend to the constitutional provisions and the law, we are ready to hear it. The contrary view being that it's a lifetime ban. So because most of you are in support of a 5-year ban or no ban at all. So that offer is open to everybody. If we consider, we will appoint amicus as well, but at short notice, whether they can render even that assistance or not, because this has to be wrapped up very quickly one way or the other, because every returning officer should not be left confused what he has to do. I'm sure you all agree to that extent. Whatever it is, it should happen once and for all. And my CMA number 1 for stay is fixed today. Regarding the RO in civil appeal number 1946/2023, will be disqualified. My lord, RO has held that he is disqualified for life, regardless of section 232(2) and regardless of orders passed by my lord. नहीं तो हम देख लेंगे ना, अभी हम अपील में जाएंगे ना, अपील तो कर लेना अपनी राइट्स ऑफ। As an abandoned caution, we have हाँ तो वो कर लीजिए ना, पता नहीं हम किस तरफ फैसला करें। अगर हमने आपके फेवर हो गया तो उसका इफेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। I had drawn your attention to the 4 points which Ishaq Hakwani's case the court had left open with regards to which court would it be to give the declaration, the procedure to be followed, the standard of proof and the locus standi. It is PLD 2015 Supreme Court 275 at page 283. These 4 issues are identified but were left unanswered. So if my lords, and this is also for posterity because this declaration of law, now we are looking at the time limit which is to be applied to this declaration of law, but how this declaration is to in fact be given is also something very important. Citation. 2015 Supreme Court, PLD 2015 Supreme Court 275, Ishaq Hakwani versus Mia Nawaz Sharif, and page 283. I didn't do it till 9:30. Paragraph 4. Entering in a judgment, my lord, in Roshan Ali Brero's case, your lordship has also raised that similar question, while dissenting, my lord. That question is still parked, my lord. Which one? It is appeal to the future, my lord. 2019 CMR. Yes, this is 2019. This is, my lord, 2019 CMR 1939. 1939. So appeal to the future. Are we the future? Yes. So now is a good time, sir. चलिए इसमें लिखें फिर। या आप में भी अपील टू द फ्यूचर कर दे। अच्छा हाँ, इसमें लिखिए CPLA number 2680/2023. The point raised in this petition are the same as are being considered in the cases in Civil Appeal 981/2018 and other cases fixed before the 7-member bench. Accordingly, this case to be fixed along with the said cases as well. Full stop. The number, अच्छा ये हमें एक चीज भी बता दीजिएगा, ये हमें because there should not be created an impression which unfortunately we cannot control, social media or even media, but for accuracy's sake, who is contesting which political party. So let it not be perceived as this is for a political party or against a political party. We are only concerned with the constitutionality and the legality of the matter. So I really don't know these names, whether they're independent candidates or their things. So if someone can give us a list of who's where, so that would be helpful and may dispel the notion that it is for a particular cause, which is not our concern in the least. क्या लिखा है? हाँ, इसमें लिखिए the learned attorney general and the advocate generals of the provinces state
that they support the constitutionality and legality of Section 232 within bracket 2 of the Elections Act. There is an S, Elections Act 2017. Full stop. A number of petitioners oppose कौन कर रहा है आप most of the petitioners oblique most of the council representing petitioners oblique appellants oblique applicants support the contention of the learned attorney general and the advocate generals, whereas आपका नाम लिख दें in CMA CP 684 और कौन अपोज कर रहे हैं आप 880 CA 880 नाम अपना बताएं नाम बताइए खुरम रजा मिस्टर खुरम रजा मिस्टर खुरम रजा in CA 880 oblique 15 states that the lifetime it should that it is a lifetime ban. अच्छा सब्जारी साहब भी का नाम पहले लिख दें, सीनियर काउंसिल है ना, सीनियर काउंसिल का पहले नाम लिख दें, सब canvass the contrary viewpoint that it is a lifetime ban. Full stop. A number of council are appearing from other stations through video link, and they are requested that in view of the constitutional importance of the matter, it would be better if they are in attendance at Islamabad so that their submissions can be properly heard and understood. Full stop. We also welcome any senior counsel who wishes to assist this court to do so with precise constitutional and legal submissions supported by applicable case law. लगता है कि अगर हम कोई माइकस अपॉइंट करें शॉर्ट नोटिस पे, पता नहीं it will be fair to a माइकस or not. Can you suggest a name that we can appoint and who's available at Islamabad, the Pindi? कलवे हसन साहब एक सीनियर वकील हैं, और कोई और अगर आपको कोई इस्लामाबाद दूसरा आना चाहिए ना. I don't know what फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट लाहौर या मौजूद कोई इस्लामाबाद पे, अब हम उनको लाहौर से बुलाएं किसी को. इस्लामाबाद में होते हैं. कौन? पिंडी में होते हैं. कौन? मौलवी अनवारुल हक साहब. हाँ, मौलवी अनवारुल हक साहब. ठीक है, इन दो को करने हैं. My lord, he is not enjoying very good health these days. He's having issues with his health lately, my lord. Maulvi Anwarul. नहीं, हम ऐसा करें, हो सकता है हम अपॉइंट कर लें जरा, बिकॉज वो कह रहे हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है. But anyways, if someone wants to come and assist on a legal point, even if they're not parties, they may come and do so. Sanaullah साहब को हमने already कह दिया. Mr. Sanaullah Baloch states that he represents his brother Samiullah Baloch and supports a lifetime ban. However, since since we are adjourning the matter, he is granted an opportunity to engage counsel if he elects to do so, or be properly authorized by his brother. ठीक? Adjourn to परसों की तारीख दे दें, जुमेरात की at 11:30. ठीक है. अच्छा, we are planning to conclude on 11 January. So that be precise as far as possible, and those questions we will not reproduce in the thing. We will just leave it like that. Anything anyone wants to add? My lord, only this, that if your lordship is willing to consider as far as Karachi, then Mr. Faisal Siddiqui can be a choice. That's the name that we're thinking. Yes, Mr. Salahuddin Ahmed, Faisal Siddiqui. Unless they're in one of these cases. Ji. So we will check with them. We will just we may add some micros.
Yes, that's yes. So we will see availability and we may appoint, and you can mention them if they just want to come themselves. We'll hear them also. Loyalty kind of concept. No, but my lords may also then consider Mr. Ashtar Asaf Ali, because he had a certain, he was the Attorney General when this case was argued. That view is already there. I know. Well, but we were looking for the alternate view, the other view. We need opposite view. ठीक है, thank you. वो आप opposite view ही देख रहे थे तो मैं इस कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ. चलिए, thank you everyone. Thank you, man. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत जारी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल आपका मौक़िफ़ क्या है, इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से दरख्वास्त है कि ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायज़ा ले, जबकि इलेक्शन एक्ट की तायद करूँगा क्योंकि ये वफाक का बनाया गया कानून है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायज़ा लिया जाए। इस दौरान मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के वकील साकिब जीलानी ने भी ताहयात नाअहली की मुखालफत करते हुए कहा कि मैंने 2018 में दरख्वास्त दायर की, जब 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला आया। अब इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल हो चुका है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 आने पर ताहयात नाअहली की हद तक इस्तिदा की पैरवी नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत हुई और अब केस की समाअत जुमेरात 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। 4 जनवरी को इस हवाले से दोबारा समाअत का आगाज़ किया जाएगा। There is also the likelihood of election tribunals and courts being inundated with cases arising out of the uncertainty. 4. The learned AAG points out that the Supreme Court Practice and Procedure Act 2013 requires that where constitutional interpretation is required, a bench of a minimum of 5 judges has to hear it. He further states that the interpretation of a federal law, the Constitution, and applicability of the decision of the Supreme Court is required. नाअहली की सज़ा 5 साल करने की कानून साजी को सपोर्ट करते हैं। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नज़रसानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रूबरू अटॉर्नी जनरल के दलाइल। इस्तिदा की अदालत ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायज़ा ले। चीफ जस्टिस के पूछने पर तमाम एडवोकेट जनरल्स ने अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायद कर दी। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, इस खला को अदालतों ने पुर किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन एक्ट में दी गई नाअहली की मुद्दत आइन से ज़्यादा अहम तसव्वुर होगी? इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस ज़माने में कायदे आज़म होते वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अगर मैं कागजात नामजदगी जमा कराऊं और कोई कहे ये अच्छे किरदार का नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा। किरदार के बारे में कहा गया है इसराफ करने वाला ना हो। हम रोज़ बिजली पानी का इसराफ करते हैं, क्या कोई इंसान हल्फन कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का हामिल है? Just use a person's name, and are all these persons aligned to certain political party, then it becomes a political matter that you're bringing to the court. If you're going to make it politicized, this is not the forum for that. लापता अफराद के मामले पर तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में सियासत आश्कार हो गई। चीफ जस्टिस ने PTI वकील से मुकालमा किया। हम समझे शायद आप लापता अफराद के मामले पर आए हैं, आप तो इस मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। सियासी बातें करनी हैं तो टीवी टॉक शोज में जाकर करें। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, ना मुस्लिम लीग नून, एक मखसूस पार्टी आकर कहती है हमारे बंदों को उठाकर सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करवाई जा रही हैं। इस पर अदालत क्या कर सकती है? वफाद आमा के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपके जिन बंदों को उठाया गया वो खुद अदालतों से रुजू करें, अदालतें खुली हैं। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी का हुक्म दे सकते हैं? आइन की कौन सी शेख अदालत को ऐसा करने की इजाज़त देती है? जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल तलब।
चीफ जस्टिस ने कहा, जब सब ओहदे पर होते हैं तो जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता, सब जिम्मेदारी कबूल करेंगे तभी मसला हल होगा। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर हर मजबूत करना है। पीटीआई इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशान केस, इलेक्शन कमीशन की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। सिंगल बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। दलाइल में कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने सही तरीके से नहीं कराए, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। वफाकी हुकूमत केस में फरीक ही नहीं, इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है, इसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। PK91 के रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस ने कहा, एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठीक करके तकर्री कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया, रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ेगा, बिला वजह की दरख्वास्तें क्यों दायर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PK91 कोहार्ट के लिए इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन 5 जनवरी मुकर्रर। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी होगी। अपीलों पर 16 जनवरी तक फैसले होंगे। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 18 जनवरी। इंतखाबी निशानात 19 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी हमरा थे। निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि चौधरी शुजात पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान हैं, उन्होंने हमेशा रवादारी और मुफाहमत की सियासत की। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का दूसरा रोज़। PTI, पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर उम्मीदवारों की अपीलों पर फौरी समाअत की ज़ुबानी इस्तदा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने ऑफिस के जरिए फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। ट्रिब्यूनल्स का कहना था, ऑफिस बाकायदा दरख्वास्त पर अपीलें आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल, मजीद सबूत सामने आ गए। 31 दिसंबर को बाजोड़ में मारे गए 3 दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा मिला। 29 दिसंबर को मीर अली में हलाक 5 दहशतगर्दों से M4 कार्बाइन, AK-47 और दीगर गोला बारूद बरामद हुआ था। नौशकी और पंजकोर में BLA ने फरवरी 2022 में उन्हीं हथियारों से FC कैंप को निशाना बनाया था। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में 6 अफराद कत्ल, लाशें गांव मोस्की के खेतों से मिली। नामालूम हमलावरों ने फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब से। मीर अली बाजार में हेयर कटिंग की दुकानें थीं। लाशें मीर अली अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। अंधाधुंध पड़ती धुंध ने इस्लामाबाद को भी लपेट में ले लिया। वफाकी दारुल हुकूमत में सर्दी में इजाफा, परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में भी मंजर धुंधला गए। पंजाब के मैदानी इलाके भी खुश्क सर्दी की लपेट में। नौशकी, तुरबत, चाकी, नौकंडी समेत शुमाली बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। गुड्डू पावर प्लांट में की खराबी में 2 रोज़ बाद भी ठीक ना हो सकी। 500 और 220 kV लाइनों पर ट्रिपिंग। जनूबी पंजाब और सिंध के कई इलाकों में तीसरे रोज़ भी बिजली की घंटों बंदिश। ज़राए के मुताबिक मुतासरा सर्किट ब्रेकर की तब्दीली में कई दिन लग सकते हैं। मौसमी हालात की वजह से NTDC का सिस्टम डिस्टर्ब, फॉल्ट से दीगर लाइन्स भी मुतासर।
टेस्ट में शाहीनों को फतह की तलाश। टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश से बचने के लिए प्लानिंग। कौमी टीम की सिडनी में दूसरे रोज भी ट्रेनिंग। फील्डर्स की बॉल पकड़ने की मशक़ें। बैटिंग बॉलिंग में खामियों पर काबू पाने की कोशिशें। प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियाँ। इमामुल हक, शाहीन शाफरीदी बाहर। साइम अयूब डेब्यू करेंगे। साजिद खान भी एक्शन में होंगे। ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के बाइस पिंक टेस्ट कहलाएगा। जापान में शदीद ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 48 तक जा पहुंची। 100 से ज़ायद ज़ख्मी। वस्ती सूबे अशिकावा में ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। दर्जनों इमारतें तबाह। सड़कों में गहरी दरारें। रिहायशी इलाके में आग भड़क उठी। हज़ारों घर बिजली से महरूम। सुनामी वार्निंग के बाद बड़ी तादाद में लोगों का इनखला। साल बदला मगर अहले फ़लस्तीन का हाल न बदला। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 180 शहीद। दीरुल बलाह में घर पर हमले में 15 शहादतें। जबालिया नसीरात अल मखासी कैंपों पर बारूद की बारिश। शहदा की मजमूई तादाद 22,000 से बढ़ गई। खान यूनुस में अल-क़साम ब्रिगेड के इसराइली टैंकों पर हमला। टैंकों को एंटी पर्सनल मिसाइल से निशाना बनाने की वीडियो जारी। इसराइली वज़ीर आज़म के मुतनाज़ा अदालती तरमीमी कानून को कलअदम करार दे दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मुतनाज़ा कानून के खिलाफ फैसला दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल पार्लियामेंट से कानून मंजूर कराया था। इसराइली हुकूमत ने अदलिया के इख्तियारात कम करने का कानून मंजूर किया था। बहुत उस स्कोर से मैं उसने मुझसे गेम ली तो मैंने दिल में सोचा कि मैं भी बाकी मैचेस हार जाओ, इंडिया से नहीं हारना, चाहे जो भी हो जाए। पेशावर की 3 बहनों की स्क्वॉश पर हुक्मरानी। स्क्वॉश चैंपियनशिप में 200 ने एक और कांजी का तमगा जीत लिया। महविश, सैरिश और महानूर बनी दुनिया बोल है में मेहमान। मजीद कामयाबी समेटने के अज़म का इरादा। पुरएतमादी हो तो ऐसी मॉडल स्टेज पर चलते चलते लड़खड़ाई, गिरते गिरते बची। माइक के सहारे खड़े होकर ऐसा रिएक्शन दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। What a great idea! There's nothing dogs love more than a walk in the park. Whoa! Hot dogs! 95 साल बाद अमेरिका का कॉपीराइट खत्म। डिज्नी के मशहूर कार्टून कैरेक्टर मिकी और मिनी माउस अवामी मिल्कियत हो गए। मिकी माउस का किरदार अब कोई भी बिला इजाजत इस्तेमाल कर सकेगा। Every hunting rifle, every knife, every round of ammunition in the village. एक्शन और थ्रिल एक साथ। फिल्म द रिबेल मून पार्ट 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म अप्रैल में रिलीज की जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म कैसे दे सकती है? आइन की कौन सी शेख अदालत को ऐसा करने की इजाजत देती है? जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क सामने आ गए। कहा, लापता अफराद के सियासी पॉइंट स्कोरिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। लापता अफराद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ने रिमार्क्स में कहा, हर इदारे को अपनी हुदूद में अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। नोटिस नहीं किया, लेकिन अटॉर्नी जनरल यहाँ मौजूद हों तो बेहतर होगा।
चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामान को कानून साजी करने का हुक्म नहीं दे सकते। हम समझते थे कि मिसिंग पर्संस का मसला अहम है, इसलिए केस लगाया। दौरान समाअत दरख्वास्त का मौक़िफ़ था कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में लापता अफराद कमीशन बनाया गया। इस कमीशन ने अब तक कुछ नहीं किया। दरख्वास्त गुजार एहतसास हसन के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों पर दरख्वास्त बहैसियत मजमूई दायर की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन सियासी अफराद के नाम लिए गए, इनको भी मासूम अफराद की फहरिस्त में शामिल करें। शुएब शाहीन ने कहा, कमीशन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2200 लोग लापता हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कितने लोग पासयाब हुए। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। लापता अफराद केस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। डायलॉग बाजी यहाँ ना करें। आपने पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का जिक्र नहीं किया। आपकी पूरी दरख्वास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार के वकील शुएब शाहीन से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको ना सियासी बातें करने देंगे, ना ही सियासी पॉइंट स्कोरिंग। चीफ जस्टिस का रिमार्क्स में कहना था कि हम यहाँ सियासी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं दे सकते, ना ही अपना मजाक उड़ाने की। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालत पार्लियामान को कैसे कह सकती है कि फलां कानून साजी करें। आइन की कौन सी शिक अदालत को इजाज़त देती है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे। Specifying certain individuals. How can you plead on behalf of another person? Unless that person is a underprivileged person, that's a different thing. Mr. Sheikh Rashid may tomorrow say, I have no grievance. Who is Mr. Shoaib Shaheen to take my name in court? Have you made him a party? No, my lord. How can you take him? There are certain basic principles of drafting. If you're going to plead someone else's case, either you array him as a petitioner or array him as a respondent. You cannot just use a person's name. And are all these persons aligned to certain political party? Then it becomes a political matter that you're bringing to the court. If you're going to make it politicized, this is not the forum for that. And these are persons who wax eloquent on television every day. अगर आप इसको पॉलिटिकल लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम आपको इजाजत नहीं देंगे। अगर नहीं, आप बिल्कुल अभी तक जो आपने बातें की हैं सारी आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी की बातें की हैं, ठीक है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। हेलो हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस कंडीशनर। इसमें मौजूद मिंट और टी ट्री ऑयल डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करें और बालों को रिफ्रेश। मीट द न्यू यू। स्टार्ट कर। रस्ते घटाने वालों को, वतन जलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। अब हेलो हेयर हर्बल शैम्पू के साथ अपने बालों को बनाएं थिक एंड स्ट्रॉन्ग, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में। गोल्डन पर्ल हेलो हेयर हर्बल शैम्पू, बाल मजबूत, पॉकेट फ्रेंडली। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, गहराई में जाकर डर्ट और ऑयल रिमूव करें। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, लेट योर फेस ग्लो। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल वाइट ब्यूटी क्रीम विद एडेड सुपर एक्टिव सीरम, ग्लूटाथायोन, अल्फा आर्ब्यूटिन और नाइसिनामाइड से डार्क स्पॉट्स गॉन। अब सबको मिलेगा ब्राइट ग्लो मेरे जैसा। गोल्डन पर्ल वाइट ब्यूटी क्रीम, लव योर स्किन। This half-hourly clock is brought to you by Advanced Hair Removing Formula, Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream। आम इंतखाबात की तैयारियां, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास, सिक्योरिटी ज़रूरियात का जायजा, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर हुकाम की इजलास में शिरकत। जनूबी कोरिया के ओपोजिशन रहनुमा चाकू हमले में जख्मी, हमलावर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑटोग्राफ लेने के बहाने आगे बढ़ा। केजी म्यूंग की गर्दन में चाकू घोंपकर भाग निकला। जापान में शदीद ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 48 तक जा पहुंची। 100 से ज़ायद ज़ख्मी। वस्ती सूबे अशिकावा में ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। गोल्डन पर्ल
White Beauty Cream with added super active serum, glutathione, alpha-arbutin और niacinamide से skin extra bright. Golden Pearl White Beauty Cream. Love your skin. दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, Aloe Vera Gel और Vitamin B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion। Conquer with Carrion. गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, गहराई में जाकर डर्ट और ऑयल रिमूव करें। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, लेट योर फेस ग्लो। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, Aloe Vera Gel और Vitamin B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, Aloe Vera Gel और Vitamin B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, फेस रहे फ्रेश, क्लीन और ब्राइट। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, लेट योर फेस ग्लो। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। फासले की हर जंजीर को तोड़ के हम पहुंचे पाकिस्तान के हर सूबे, हर गांव, हर कस्बे, हर गली से जुड़े मसाइल तक। हर खबर खास होगी, हर रंग और उमंग हमारी है पहचान। हमारी सकाफत ही तो है हमारी आन। बने हर पाकिस्तानी की आवाज, देखिए पाकिस्तान का हर रंग। बोल पाकिस्तान, रोजाना शाम 5:03 पर सिर्फ बोल न्यूज पर। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था हाई कोर्ट सिर्फ सूबे तक फैसले कर सकती है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए होते हैं। वफाकी हुकूमत का कहना था हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते, नोटिस जारी हुआ तो मुआवनत करेंगे। पीटीआई ने दौरान समाअत अपना मौक़िफ़ देने की इस्तदा कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की है। कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तनाई जारी किया गया। एडवोकेट जनरल ने कहा हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते, हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं, हमें इस केस से निकाला जाए। अगर हमें नोटिस जारी किया जाता है तो फिर अदालत की मुआवनत करेंगे। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि वफाकी हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी हमारा भी यही मौक़िफ़ है। बादिसा मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद का कहना था अदालती फैसला एक तरफा था जो गैर कानूनी है। कि बगैर इलेक्शन कमीशन को सुने जो सारी रिलीफ मेन पिटीशन में मांगी थी वो लर्नेड जज साहब ने उस ऑर्डर में दे दी थी। तो इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा ये की है कि वो ऑर्डर रिकॉल किया जाए और दोनों इलेक्शन कमीशन और पीटीआई को सुनने के बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर किया जाए। अदालत ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया। तहम पीटीआई की जानिब से मशाल यूसुफजई पेश हुई और पार्टी का मौक़िफ़ देने की इस्तदा की। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पीके 91 रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने रिमार्क दिए आरओ कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो।
PK 91 कोहाट में RO से मुतालिक फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया, आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं? RO कोई भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? बिला वजह की दरखास्तें क्यों दायर की जा रही हैं? आपको जुर्माना क्यों ना करें? जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हलके के लिए इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन 5 जनवरी मुकर्रर। कागजात मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी होगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर 16 जनवरी तक फैसला करेंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 18 जनवरी होगी। इंतखाबी निशानात 19 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल में केसेस की समाअत जारी। जस्टिस आमिर नवाज राना की सरबराही में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की मुस्तरद शुदा कागजात नामजदगी पर समाअत हुई। 11 अपीलों पर समाअत करते हुए फरीकैन को 4 जनवरी तक नोटिस जारी कर दिए गए। तफसीलात कोयटा से नुमाइंदा बोल दानिश मुराद से। जी, आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उनकी जानिब से समातों का जो है वो आगाज़ किया जा चुका है। आज जो जस्टिस आमिर नवाज राना साहब की अदालत में 11 केसेस की समाअत हुई, जिनको 4 तारीख के जो है वो नोटिस जारी किए गए जो फरीकैन थे उनको। जबकि जो आज केसेस की समाअत हुई है जस्टिस आमिर नवाज राना साहब की अदालत में, उनमें जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा वली खान नूरजई, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा अब्दुल कहर वदान, उसके अलावा HDP के मिर्जा हुसैन और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदारजादा इनाम खान केतरान समेत जो दीगर जो उम्मीदवार थे उनके केसेस की समाअत हुई है, जिनको 4 तारीख के जो नोटिस हैं वो भी जारी किए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो साबिक सूबाई वजीर थे और मौजूदा जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं ताहिर महमूद खान, तो इनको जो है वो अदालत ने आज इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। उनका जो हल्का था PB 44 क्वेटा, ये जो सिलसिला है ये चंद रोज तक जारी रहेगा और जो उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे वो भी यहाँ पर आएंगे और अपने जो कागजात नामजदगी है उनको यहाँ पर जो है वो कोर्ट में या जो ट्रिब्यूनल बनाया गया। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है और अब तक 14 उम्मीदवारों ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जमा की हैं, जिनमें से 3 की अपीली कागजात नामुकम्मल होने पर मुस्तरद कर दी गई हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है और अब तक पेशावर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है वो 14 उम्मीदवारों ने कागजात मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ अपीलें जमा की है, जिनमें से 11 उम्मीदवारों की अपीलें जो है वो समाअत के लिए मंजूर की जा चुकी है, जबकि 3 उम्मीदवारों के कागजात जो अपील है वो उनको मुस्तरद किया जा चुका है, क्योंकि इन 3 उम्मीदवारों ने जो अपील जमा की है उनके कागजात नामुकम्मल थे, तो इसी बिना पर इन तीनों के अपीलें जो है वो मुस्तरद किए जा चुके हैं। आज साबिक सूबाई वज़ीर तैमूर जगड़ा ने अटार्नी पावर के ज़रिए जो है वो अपील दायर कर दी है और अपील दायर करने का ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा और कल आखिरी तारीख़ है। इस तमाम तर अपीलों पर जो है वो जस्टिस शकील जो है वो समाअत करेंगे और समाअत जो है वो 10 तारीख़ तक जारी रहेंगी। इसके बाद जो है वो फैसला जारी किया जाएगा और लिस्ट जारी किए जाएंगे कि किन के कागज हुए और किन के मुस्तरद हुए हैं और अब तक जो है वो 11 उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो लाहौर में इंतखाबी मैदान को गरमाने के लिए तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज सूबाई दारुल हुकूमत पहुंचेंगे, रहनुमाओं के साथ बैठक लगेगी। मुल्क में सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। आम
आम इंतखाबात कैसे लड़ना है, किस किस को इंतखाबी दंगल में उतारना है। बिलावल भुट्टो की लाहौर में बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हल्का N127 से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में 3 रोज क़याम मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल बिलावल हाउस लाहौर में दोपहर 3 बजे होगा। मुल्क में सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर भी बात होगी। इस दौरान अहम सियासी शख्सियात भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगी। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने कहा है कि 2011 में जो मुजस्मा तैयार किया उसकी आज भी हिफाजत और सरपरस्ती हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मुजस्मा बनाने वाले अतराफ जुर्म नहीं कर रहे। सिसिलियन माफिया, डॉन माफिया के अल्फाज वापस नहीं लिए लेकिन मासूम के अल्फाज दे दिए गए। उन्होंने कहा जमशेद दस्ती के मामले की हकीकत भी सामने आना चाहिए। मुजस्मा तैयार किया गया था, उस मुजस्मे की आज भी हिफाजत और उसकी सरपरस्ती हो रही है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से जो एक गैर यकीनी सूरत हाल से हम 2-4 हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुजस्मा बनाने वाले इतराफे जुर्म नहीं कर रहे। सारा गंद जो था हम पे डाला गया सिसिलियन माफिया का, डॉन का, आज तक उसको वापस नहीं लिया गया उन अल्फाज को, मगर दूसरों के लिए गुड टू सी यू और मासूम के अल्फाज नए दे दिए गए। हजारों लोग जो KPK से भर्ती किए गए थे हमारे खिलाफ बयानियां बनाने के लिए, मगर आज तक उनको तोड़ा नहीं जा सका। आज तक उनसे पूछा नहीं जा सका कि रियासत मुखालफ बयानियां क्यों बनाया जाता है और किन के कहने पे बनाया जाता है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए उनके घर जा पहुँचे। मुलाकात में सरबराह मुस्लिम लीग क़ाफ की अयादत की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि चौधरी शुजात ने रवादारी और मफाहमत की सियासत की। मोहसिन नकवी ने खिदमत, कारकर्दगी और मेहनत की आला मिसाल कायम की है। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड इस मुल्क के अवाम है। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं उम्मीद है आम इंतखाबात अख्तर होंगे। 9 मई के वाक़यात में PTI के टॉप लीडर मुलविस थे, इस वजह से उनके नामजदगी फॉर्म रद्द हुए। कि मुश्किल वक्त में कौन उनके साथ खड़ा रहा है और कौन उनको छोड़ के चला गया है। अवाम जानती है कि इमरान खान की आमरीत से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च करके और फिर आईनी तरीके से पहली बार आईनी तरीके से मुल्क के वजीर आजम को हटाया। ये सब अवाम को पता है कि कौन ये सब काम कर रहा था। नून लीग की हालत ये है इस वक्त में, ज्यादा जरूर हमारे साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने अपने सारे पुराने जो थे जिन्होंने स्ट्रगल किया सिंध में, उनको छोड़ के एक ताजा ज्वाइन किया जिसने अब ये नए जमात पारदर्शी सियासतदान जो है ना जो सदर बन गया जमात का। आगे बढ़ते हैं। लकी मरवत के नायक नूर मोहम्मद ने 19 अक्टूबर 2021 को आवारान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी एक टांग खो दी। नूर मोहम्मद ने बारूदी सुरंगों की क्लियरेंस के दौरान फराइज मनसबी की बेहतरीन मिसाल कायम की। मेरा नाम नायक नूर मोहम्मद है। मैं लकी मरवत से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने 2009 में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। 2021 में मेरी यूनिट आवारान में तैनात थी। 19 अक्टूबर 2021 को हमें आवारान की इलाके बलखतर में रोड क्लियरेंस का मिशन सौंपा गया। दौरान ऑपरेशन दहशतगर्दों की जानिब से नस्बशुदा बारूदी सिरिंज का धमाका हुआ। धमाके में मेरी दाएं टांग शहीद हो गई। इस बात पर फख्र है कि मैंने ये कुर्बानी वतन की हिफाजत
और अल्लाह की राह में दी। इस वतन के लिए हमारा औलाद भी कुर्बान है, हमारा जान भी कुर्बान है। ये वतन है तो हम है, ये वतन अगर नहीं है तो हम भी नहीं होंगे। हम महसूस तो होता है कि हम मजदूर हो गए, लेकिन फिर भी जो है ना हम कोशिश करते हैं हर काम की कि हम खुद अपना काम कर सकता भी है। जब मैं ज़ख्मी हुआ तो हमारा घर वाले तो परेशान थे, लेकिन फिर भी जब मेरा पाँव लग गया तो मैं बस अपना काम भी कर सकता हूँ, सफ़र भी कर सकता हूँ। जो काम की ज़रूरत होता है, मतलब दूसरे बंदे की ज़रूरत हमें नहीं होता है, तो हम खुद कर सकते हैं। तो घर वाले अभी माशाल्लाह खुश है, हर चीज़ भी मिलता है अल्लाह की तरफ से। तो ज़ख्मी होने के बाद हमारा जज्बा बिल्कुल उस जैसा जैसे मैं पहले था, इसलिए कि हमारी जान तो बच गई है ना। दहशतगर्दों के लिए मेरा ये पैगाम है कि पाकिस्तान फ़ौज और आवाम मुत्तहिद है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, और दहशतगर्द जितना ज़ोर लगाए तो इंशाअल्लाह वो जीत नहीं सकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जापान में ज़मीन की लर्जिश के तबाहकुन असरात। ज़लज़ला 48 जाने ले गया, 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए, सड़कों पर दरारें पड़ गईं। मुतासरा मकामात से तकरीबन 1 लाख अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। इमदाद की तकसीम के दौरान मुतासरीन ने मिसाली नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया। सात 7.6 की शिद्दत से आने वाले ज़लज़ले ने अशिकावा के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिला डाला। सड़कों पर दरारें पड़ गईं। लग्जरी गाड़ियों का हशर नशर हो गया। तकरीबन 32,000 घर बिजली से महरूम हैं। मुख्तलिफ वाक़यात आतिशज़दगी का सबब भी बने। आफत बीतने के बाद लोग नुकसानात का अंदाजा लगा रहे हैं। शदीद मुतासरा रिहायशी इलाकों के मकीनों को आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया। ज़लज़ले ने सबसे ज्यादा तबाही नोटो जज़ायर में मचाई, जहाँ सुनामी की लहरों ने सब कुछ तहोबाला कर डाला। ज़लज़ले के वक्त पेश आए मजीद वाक़यात की वीडियोस वायरल हुई, जिनमें सड़क पर खड़ी गाड़ियों को बुरी तरह हिलते देखा जा सकता है। मुतासरा मुकामात से रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात वज़ीर आज़म ने मीडिया को बताई। दूसरी जानिब जापानी हुकूमत ने मुतासरीन में इमदाद की तकसीम शुरू की तो सैकड़ों अफराद मुनज़्ज़म अंदाज में लाइन लगाकर खड़े हो गए। हुक्मरान शरीक जुर्म मगर अवाम मजलूमों की हामी। अमरीका और यूरोप में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे जारी। अहले गज़ा की नस्ल कुशी के खिलाफ जापान, जनूबी अफ्रीका समेत मुस्लिम ममालिक में भी एहतजाज हुआ। इसराइली सफाकियत से 2-4 गजा की हिमायत में मुजाहिरों का एक और रोज। दर्द दिल रखने वाले सैकड़ों अफराद घरों से निकल आए। अमरीकी शहर बोस्टन में इसराइली जारी के खिलाफ भरपूर एहतजाज हुआ। शहरियों ने मजालिम के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। फ्रांस के शहर मार्सेले में भी आवाज़ हक बुलंद हुई। फिजा फ्री फलस्तीन के नारों से गूंज उठी। मराकश में भी अहले फ़लस्तीन के लिए मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज किया और गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। जापान के शहर टोक्यो में फ़लस्तीनियों के लिए रैली के शुरा ने इसराइली जारियत के खिलाफ नारे लगाए और गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया। जनूबी अफ्रीका में अहले फ़लस्तीन के लिए मुजाहिरा। गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने जोहानिसबर्ग से अल-अक़सा तक हम गजा के साथ हैं के नारे लगाए।
काहिरा में मिस्री कारकुन सहाफ़ियों की रैली। फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम के खिलाफ सहाफ़ियों ने नारे लगाए और गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। लबनान में भी फ़लस्तीनियों के लिए मुजाहिरा, गजा में जारी जहरीर के खिलाफ नारे। टोक्यो के हनीदा हवाई अड्डे पर हादसा, तैयारा लैंडिंग के दौरान दूसरे तैयारे से टकरा गया। इंजन में आग भड़क उठी। तैयारे में 389 मुसाफिर सवार थे। तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट को तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। टोक्यो के हनीदा पर हादसा, तैयारा लैंडिंग के दौरान दूसरे तैयारे से टकरा गया। इंजन में आग भड़क उठी और तैयारे में 379 मुसाफिर सवार थे। तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट को तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। और अब खबर खेल के मैदान से। कैंगरूज के देश में शाहीनों को फतह की तलाश। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से सिडनी में शुरू होगा। पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। इमामुल हक और शाहीन आफरीदी बाहर, साइम अयूब डेब्यू करेंगे। साजिद खान भी एक्शन में होंगे। कौमी टीम की सिडनी में दूसरे रोज़ भी ट्रेनिंग। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज, कौमी टीम का लाहौर में जारी कैंप का आखिरी रोज। स्क्वाड में शामिल 6 खिलाड़ियों का कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। 5 मैचेस की सीरीज 12 जनवरी को ऑकलैंड में शुरू होगी। आखिरी मैच 21 जनवरी को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम कल रात लाहौर से बरास्ता दुबई ऑकलैंड रवाना होगी। फौज और फ्रंटियर कोर साउथ के ताउन से गोमलजाम जनूबी वजिस्तान में क्रॉस कंट्री चैलेंज ट्रॉफी का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में 59 टीमों के 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इख्तिताम पर फातेह टीमों को इनामात से नवाजा गया। शुरका की बड़ी तादाद ने मुकाबलों को देखा और इवेंट को बेहद सराहा। कराची की 3 बहनों की स्क्वॉश पर हुक्मरानी। स्क्वॉश चैंपियनशिप में 2 सोने और 1 कांसी का तमगा जीत लिया। महवेश, सहरिश और महानूर बनी दुनिया बोल है में मेहमान। मजीद कामयाबियां समेटने के अज़्म का इरादा किया। जीतने के बाद मेरे बाबा को फेडरेशन से भी कॉल आई, सब चैनल सबसे कॉल आई और उन्होंने भी हमें बहुत मतलब खुश से अप्रिशिएट भी किया और कांग्रेचुलेट भी किया। बहुत खुश लोग और ये भी थे कि आई गेस वो फील भी ये कर रहे थे कि ये लोग तो जीत सकते थे, ये लोग तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं और अच्छे प्लेयर हैं हमारे लिए। तो मैं कहती हूँ कि हमने जीता, उनको प्रूव करवाया कि हम भी खेल सकते हैं इंटरनेशनली और पाकिस्तान की गर्ल्स भी इंटरनेशनली जीत कर आ सकती। और बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने प्राइवेट कंपनीज या इंडस्ट्रीज जो भी देख रही है, तो आप इनकी तरह हमें या बाकी प्लेयर्स को, जितने भी प्लेयर्स उनको सपोर्ट करें, स्पॉन्सर दे उनको, ताकि वो भी टैलेंट हर किसी में होता है बट आप उनको थोड़ा सा पुश। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन 2 जज नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट में रूटीन में रिट पिटीशंस जो है वो डीबी सुनती है और जज साहब ने उस दिन भी ऑर्डर कर लिया कि द फर्स्ट अवेलेबल डीबी के सामने ये रख ले। आज की जो स्टेटमेंट खबर हमें आई है वो वफाकी हुकूमत ने कहा कि हमारा उसके सरोकार नहीं है, सूबाई हुकूमत ने कहा कि हम उसमें पार्टी बनना नहीं चाहते। लेकिन उस दिन जब हमारी हेयरिंग हुई थी तो दोनों हुकूमतें आई थी और बड़ा फोर्सफुली उन्होंने आर्गू कर लिया था फॉर वट एवर रीज़न। अब इस मरतबा एक बात ज़रूर है, जब हमारा तो शखाना का केस चल रहा था तो नवाज शरीफ साहब के वकील को एंगेज करके इलेक्शन कमीशन ले आई। आज जो पेशावर हाई कोर्ट में हुआ है तो जहांगीर तरीन का वकील एंगेज होकर के आया है। देखिए, आप इलेक्शन कमीशन है, आप फ्री एंड फेयर रहे तो सबके लिए बेहतर है। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। हम आपसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं, हम आपसे दोबारा दरख्वास्त करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। मेहरबानी करके जिम्मेदारी का एहसास कर ले, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें, सबको एक जैसा मौका होने दे। इस प्रोसेस में से अगर आप टेक्निकल तरीके से लोगों को आउट करेंगे तो ये बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आयद होगी, फिर इलेक्शन तो हो जाएगी। इसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। फासले की हर जंजीर को तोड़ के हम पहुंचे।
पाकिस्तान के हर सूबे, हर गांव, हर कस्बे, हर गली से जुड़े मसाइल तक हर खबर खास होगी। हर रंग और उमंग हमारी है पहचान, हमारी सकाफत ही तो है हमारी आन। बने हर पाकिस्तानी की आवाज, देखिए पाकिस्तान का हर रंग। बोल पाकिस्तान, रोजाना शाम 5:03 पर, सिर्फ बोल न्यूज पर। लफ्जी निश्तर, इल्जामात की गोलाबारी और तंज की बौछार। पीपल्स पार्टी बावजूद इन हालात के एक साथ जमहूरियत के खातिर, पार्लियामेंट के खातिर इनके साथ खड़ी है। देखिए, हमने ये थोड़ी तय किया कि हमें नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ, हमारे दरवाजे तो पीपल्स पार्टी के साथ भी खुले हैं। यानी इस कौमी जवाब आपने दे दिया। बड़ी खबर दे रहे हैं फारूक सिद्दीकी साहब, आप नून लीग की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है उस हद तक जिस हद तक होना चाहिए। मैं मुतमईन हूँ या नहीं, हालात मुल्क के देखें, वहीं पे आपको जवाब मिल जाता है। हमारी इलाही पार्टीज के जो सरबराह थे, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया कि अब इसकी धमकी के ऊपर अगर ये काम करेंगे तो ये तो फिर हमें आगे लगा लेगा, तो इसलिए आप रुक जाए। इक्का दुक्का सीटों के लिए पूरी की पूरी नून लीग बलूचिस्तान पहुँच गई। ये हमारी वजह से धरती माँ के लिए अपनी माओ से दूर होती। इस दिन एहसास होता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। कि तुमने क्या किया लोगों, कि तुमने किसको सरेदार खो दिया। ऐसे नहीं चलेगा। पीर से जुम्मा रात 10:03 पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और कारोबार से जुड़ी बहुत सारी अहम खबरें। पाकिस्तान $20 अरब खुद जनरेट नहीं कर सकता। ये अगर आपने बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके लिए कैश फंड्स होते हैं, मनी मार्केट फंड्स होते हैं। SIFC एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, कमाइनिंग के हवाले से था और आपको IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए काम करना पड़ेगा। अब जब स्मगलिंग रुकेगी तो आपकी लोकल इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा, जैसे नेशनल रिफाइनरी वगैरह है। करेंसी काफी हद तक कंट्रोल में आ गई है। तो आप देखो ना, हमारा रुपया इस वक्त रीजन में सबसे कमजोर तरीन करेंसी में तुम्हारा भी गवर्नमेंट होती है तो वो टफ डिसीजंस लिए जाते हैं। व्यापार पीर से जुम्मा दोपहर 4:03 पर। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। Experience the luxury of Faez Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Faez Sanitary for an elegant lifestyle. नाअहली की सजा 5 साल करने की कानून साजी को सपोर्ट करते हैं। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रूबरू अटॉर्नी जनरल के दलाइल। इस्तिदा की अदालत ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले। चीफ जस्टिस के पूछने पर तमाम एडवोकेट जनरल्स ने अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायद कर दी। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, इस खला को अदालतों ने पुर किया। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा केस को 11 जनवरी तक ख़त्म करना चाहते हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस ज़माने में कायदे आज़म होते वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा अगर मैं कागजात नामजदगी जमा कराऊँ और कोई कहे ये अच्छे किरदार का नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूँगा। किरदार के बारे में कहा गया है इसराफ करने वाला ना हो। हम रोज़ बिजली पानी का इसराफ करते हैं, क्या कोई इंसान हल्फन कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का हामिल है? लापता अफराद के मामले पर तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में सियासत आश्कार हो गई। चीफ जस्टिस ने PTI वकील से मुकालमा किया। हम समझे शायद आप लापता अफराद के मामले पर आए हैं, आप तो इस मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। सियासी बातें करनी हैं तो TV टॉक शोज़ में जाकर करें। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, ना मुस्लिम लीग नून। एक मखसूस पार्टी आकर कहती है हमारे बंदों को उठाकर सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करवाई जा रही हैं। इस पर अदालत क्या कर सकती है? वफाद आम्मा के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपके जिन बंदों को उठाया गया वो खुद अदालतों से रुजू करें, अदालतें खुली हैं।
हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी का हुक्म दे सकते हैं? आइन की कौन सी शिक अदालत को ऐसा करने की इजाज़त देती है? जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, आइंदा समाअत पर अटर्नी जनरल तलब। चीफ जस्टिस ने कहा, जब सब ओहदे पर होते हैं तो जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता, सब जिम्मेदारी कबूल करेंगे तभी मसला हल होगा। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत करना है। पीटीआई इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशान केस, इलेक्शन कमीशन की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। सिंगल बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। दलाइल में कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। वफाकी हुकूमत केस में फरीक ही नहीं। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है, उसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हों। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, PK 91 के रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला करदम करार। चीफ जस्टिस ने कहा, एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया, रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ेगा, बिला वजह की दरख्वास्तें क्यों दायर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PK 91 कोहाट के लिए इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन 5 जनवरी मुकर्रर। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी होगी। अपीलों पर 16 जनवरी तक फैसले होंगे। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 18 जनवरी। इंतखाबी निशान 19 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी हमरा थे। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि चौधरी शुजात पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान हैं, उन्होंने हमेशा रवादारी और मफाहमत की सियासत की। जापान में शदीद ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 48 तक जा पहुंची। 100 से ज़ायद ज़ख्मी। वस्ती सूबे इशिकावा में ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। दर्जनों इमारतें तबाह, सड़कों में गहरी दरारें। रिहायशी इलाके में आग भड़क उठी, हज़ारों घर बिजली से महरूम। सुनामी वार्निंग के बाद बड़ी तादाद में लोगों का इनखला। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। हेलो हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस कंडीशनर। इसमें मौजूद मिंट और टी ट्री ऑयल डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करें और बालों को रिफ्रेश। मीट The new you। जैज के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB YouTube। अभी जैज वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज सुपर 4G। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, फेस रहे फ्रेश, क्लीन और ब्राइट। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, लेट योर फेस ग्लो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार और नए साल के पहले कारोबारी हफ्ते का आज दूसरा रोज है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला मुसलसल जारी है। गुज़िश्ता रोज भी हमने रिकॉर्ड तेजी देखी और ये तसलसल आज भी बेहतर अंदाज से जारी रहा। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 2210 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। आज मजीद तकरीबन 500 पॉइंट्स के करीब ये बढ़ा है और 65,000 की सतह को भी आज इसने अबूर किया। कहाँ पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है जानेंगे। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं स्टॉक एक्सचेंज से। कफील, बताइएगा ये जो 2 रोज गुजरे नए साल के बड़े जबरदस्त रहे हैं, आज ट्रेडर्स का क्या कहना है और ये इंडेक्स आगे कहां तक जा सकता है इस हफ्ते के इख्तिताम तक?
देखिए, साल का दूसरा कारोबारी दिन है स्टॉक मार्केट में, और कारोबार के आगाज में मार्केट का जो सेंटीमेंट था पॉजिटिव था और तकरीबन 450 पॉइंट्स का मार्केट में इजाफा देखी गई, जिसके बाद जो 100 इंडेक्स था वो 65,000 की जो सतह है उसे बहाल करने में जो है एक बार फिर कामयाब हुआ। और ताहम उसके बाद अगर हम बात कर लें तो मार्केट में जो सेंटीमेंट था थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव हुई प्रॉफिट टेकिंग के बायस, और मार्केट में जो है वो कमी देखी गई। ओवरऑल अगर हम बात कर लें जो सरमाएकारों का कहना यही है कि ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है और मार्केट में जिस तरह खबरें हैं वो खासी मस्बत है। आज भी हम बात कर ले तो सीमेंट और जो टेक्नोलॉजी के जो सेक्टर्स हैं उसमें खासी जो खरीदारी वो देखी गई थी। ताहम उसके बाद थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो है मार्केट में वो देखा जा रहा है। ओवरऑल जो सेंटीमेंट है मार्केट के जो माहिरीन है वो यही कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह IMF से जो है वो मीटिंग से और उसके बाद जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को जो रकम है वो मिल जाएगी, उसके बाद यकीनन जो है और जो है वो इजाफा ही देखा जा सकता है और जो डॉलर है उसकी कदर में भी मजीद गिरावट देखी जा सकती है। ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। आज भी सीमेंट और टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स ने बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन मजीद सेक्टर्स का बेहतर परफॉर्म करेंगे और ये 65,000 की सतह से मजीद आगे कितने दिन में और कहां तक जाएगा, फिर आगे इलेक्शन का माहौल बनना है तो उस वक्त क्या सूरत हाल पैदा होगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। जफर मोती साहब CEO हैं कैपिटल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो साल के आखिर में गुज़िश्ता साल के आखिर में ये जो 5-6 रोज का हमने एक डाउनफॉल देखा, वो एक वक्ती डाउनफॉल था, प्रॉफिट टेकिंग उसकी वजह थी, थोड़ी सी करेक्शन मार्केट में आनी थी। अब स्टेबल है मार्केट, ये जो हम 2 रोज से एक राइज देख रहे हैं, दोबारा से रिकवरी देख रहे हैं, ये अब आगे की तरफ जाएगी, रिवर्स तो नहीं होगी? देखिए, वो जो 2 एकदम डाउनफॉल हुई थी उसकी सबसे बड़ी वजह थी उधार का ओवरलोडेड हो जाना, उधार के शेयर खरीदारों का। यानी 42 अरब रुपए का 4 दिन के अंदर वो रोल ओवर होने का था। ये 4 दिन के अंदर नया पुराना वादा दिसंबर का खत्म हो रहा था और जनवरी का आ रहा था। तो जो वीक उसमें थे, जो एक्सपोजर तो भर रहे थे, लेकिन वो 30% 35% के इंटरेस्ट रेट पर उनके लिए वो फीजिबल नहीं था कि वो स्टॉक्स रखें। तो इनको अच्छे जब प्राइस मिल रहे थे और 67,000 टच करके, तो उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, अपने ऑफलोड किया और उन लोगों को शेयर पकड़ा जो फिर स्ट्रॉन्ग थे। अब जैसे ये हुआ तो 8 अरब रुपए का तकरीबन 12 अरब रुपए का वो सेल ऑफ हुआ और वो सेल ऑफ की वजह से अपना 30 अरब का वो नए वादे में शिफ्ट हुआ। उसके बाद से आप देख लें कि जो हम बायर की बात कर रहे थे वो हम सोच रहे थे कि 5 जनवरी से आएंगे वापस, जब छुट्टियां खत्म होंगी इंटरनेशनल हॉलीडेज की। वो इससे पहले ही मार्केट में जंप इन कर गए हैं, स्ट्रॉन्ग है। और स्पेशली जो लाहौर की बल्क में सेलिंग आई थी पंजाब से, जो इन्वेस्टर ऑफलोड हो रहे थे, वो इन्होंने अब्जॉर्ब कर लिए, जो फौरी तौर पर ये शो कर रहा है कि इस वीक में हमारी मार्केट फिर अच्छा परफॉर्मेंस शुरू कर देगी। अच्छा, तो जफर साहब, ये आगे ज़ाहिर IMF से भी अच्छी खबरें आ रही हैं और एक इंस्टॉलमेंट जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है $70 करोड़ की, जब वो पाकिस्तान को मिलेगी तो उसके कितने बेहतर असरात मार्केट पर मुरतब होंगे? उस दौरान इंडेक्स को, मुख्तलिफ सेक्टर्स को क्या हम बेहतर परफॉर्म करता हुआ देखेंगे, चूंकि अब उसमें कुछ ही दिन बाकी हैं? जी बिल्कुल देखेंगे, और इस दफ़ा IMF तो पूरी टीम के साथ निगोशिएट भी करेगा और IMF ने गो हेड तो दिया हुआ है नीचे के लेवल पर, लेकिन वो चाहते हैं कि अब जो दोबारा इशुएंस होगी, नए पॉलिसी प्रोग्राम में भी हम जाएंगे, तो वो इतने स्ट्रांग तरीके से और नुक्स एंड कॉर्नर्स को सेट करेंगे, ऐसे पेचकस और टाइट करेंगे और हर चीज को मेंटेनेबिलिटी पर लेकर आएंगे। तो वो निगोशिएशन के लिए भी आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल में हमारी इकोनॉमी और हमारे जैसे जो इकोनॉमी के फ्रंटमैन है उनको संभालने के लिए IMF के एकदम मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा है। अच्छा, और जफर साहब, ये जो इस वक्त हम इंडेक्स का एक राइज देख रहे हैं, 65,000 की सतह इसने आज भी क्रॉस की, ये आगे 70-75,000 तक जाता है, तो ये सिर्फ कुछ सेक्टर्स इस इंडेक्स को लेकर चल रहे हैं या ओवरऑल पूरी मार्केट के तमाम सेक्टर इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और पहले से बेहतर पोजीशन पर है? देखिए, जो पहले से डूबे हुए सेक्टर थे, मुदारबा, स्पिनिंग, वो तो आप को फिगर्स आ गए होंगे, वो तो इस साल भी उन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। हाँ, लेकिन जिस पर एनर्जी का सेक्टर, सीमेंट का, फर्टिलाइजर का, वो इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि अब उनके ऊपर से जो ताज पहना हुआ उन्होंने सर्कुलर डेट का, वो गवर्नमेंट खत्म करने की कोशिश कर रही है। अगर वो हो जाता है खुश असलूबी से और ये एक दूसरे का गला पकड़ना छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसे भाव में, इतने सस्ते भाव में माल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी इतनी मार्केट जो बड़ी है वो 4-4.25 के PE मल्टीपल पर है।
अच्छा, और सर ये जो मार्केट का इस वक्त राइज है, ये एक नए सरमायाकार के लिए जो आना चाहता है और इन्वेस्ट करना चाहता है, ये उसके लिए राइट टाइम है? चूंकि मार्केट अभी ऊपर जाना शुरू हुई है और ये इंडेक्स एक बार 6 फिगर्स को अगर क्रॉस कर गया, लेट सपोज अगले 1-1.5 माह में या 2 माह में, तो फिर या वो राइट टाइम होगा एक नए इन्वेस्टर के लिए? जफर साहब को आवाज़ आ रही है? जफर साहब से हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। जफर साहब मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO कैपिटल सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के, और बता रहे हैं कि अभी आने वाली जो किस्त है IMF की, उससे भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पर आएगा और ये स्टेबिलिटी मार्केट की अभी आगे मुख्तलिफ सेक्टर्स के साथ बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो जफर साहब ये बताएगा कि एक नया सरमायाकार जो है, नया इन्वेस्टर जो है, उसके लिए ये राइट टाइम है कि इस वक्त इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है, कुछ सेक्टर्स बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनमें इन्वेस्टमेंट की जा सके? जी राइट टाइम है, लेकिन वैल्यू शेयर्स में है और जिसमें वॉच जरूर करना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। इसमें डेली के तरीके से इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे जो है पॉलिटिकल जो मेथोडोलॉजी चल रही है वो भी इम्पैक्ट मारेगी। तो अगर ये खुश असलूबी से डेमोक्रेसी की तरफ चले गए तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं, कंफ्यूजन इन्वेस्टर को ये इलेक्शन आने वाले में भी है। तो ये बताइएगा जफर साहब, ये जो अगले 40 डेज हैं, अब ये कितने क्रिटिकल हैं? ये इसमें क्या ऐसे इम्कानात हैं कि ये इंडेक्स नीचे आ सकता है? मार्केट के वो सेक्टर्स जो कि इस वक्त बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी मुतासिर हो सकती है? चूँकि अभी तक तो सब कुछ एक बज़ाहिर नॉर्मल शेप में आगे बढ़ रहा है। 8 फरवरी को इलेक्शन भी है, लेकिन पोलिंग डे से पहले या उसके 1-2 दिन बाद पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पर? बहुत पड़ता है भाई। मैं कह रहा हूँ ना, हमारे कंट्री के जो पॉलिटिकल मूव्स होती हैं, इस्लामाबाद में होती हैं, कोर्ट्स में हो रही हैं, ये अगर इसके फैसले या स्ट्रीट पर होने लगेंगे तो डिफिकल्टीज इन्वेस्टर्स को आ सकती हैं। अच्छा, और फिर उसमें ज़ाहिर है जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं वो तो सर्वाइव कर जाते हैं, एक नए इन्वेस्टर के लिए फिर ये हालात थोड़े मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाते हैं आपकी नज़र में? जी बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि अभी आप देखें कि हम लोग की नज़र सोशल मीडिया के ऊपर भी है और जो नॉर्मल मीडिया है उस पर भी है। जो तजाद दोनों में है वो शो कर रहा है कि पीपल आर अफ्रेड, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये कुछ पता नहीं है। तो जफर साहब, ये जो चंद एक सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि पिछले चंद सालों से परफॉर्म नहीं कर रहे, अभी कुछ चंद एक आपने भी पॉइंट आउट किए, तो ये क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे और इनको अगर दोबारा से जिंदा करना है तो क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि ओवरऑल मार्केट को मजीद तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके? देखिए, वो जिंदा हो नहीं सकते, उनके बैंक्रप्सियां सालों से डिक्लेयर्ड हो गई हैं। अच्छा। उनकी मशीनें, फैक्ट्रियां वो सड़ गई हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट के लिए है नहीं, उनके ऊपर बैंकों के बहुत ज़बरदस्त कर्जे चढ़े हुए हैं। तो उनको टर्न अराउंड करने के लिए तो एक ही तरीका है कि वो कोई नया बायर ढूंढें और अपने ऑफलोड करें अपने सब चीज़ें। अच्छा, और ये जो SIFC के थ्रू आप कुछ गेम चेंजिंग मोमेंट्स आगे मार्केट में देख रहे हैं, ख़ासतौर पर ये जो इस वक्त एनर्जी सेक्टर है पाकिस्तान का, या जो इस वक्त IT सेक्टर है, इस सेक्टर की परफॉर्मेंस आगे चलकर मज़ीद बेहतर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और जो अश्योरेंसेस हमें मिली हैं UAE से, सऊदीया से, रशिया से, चाइना से, ये सब दिखा रहे हैं कि ये भी इंटरेस्टेड है इतनी बड़ी मार्केट में एंटर होने के लिए। और मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे रिजर्व जो है बड़े अच्छे लेवल्स पर आते हैं। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, CEO कैपिटल सिक्योरिटीज़ प्राइवेट साथ मौजूद थे। और आज मार्केट ने 65,000 की सतह को अबूर किया। चंद एक सेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और मार्केट इस वक्त ऊपर जा रही है, लेकिन लोगों की मुश्किलात कम नहीं हो रही, चूँकि हुकूमत ने LPG की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है और ओगरा की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये बड़ा इजाफा हुआ है और LPG की कीमत अब 256 रुपये 42 पैसे फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा हो रहा है। LPG का 8 किलो का जो घरेलू सिलेंडर है वो भी महंगा हो गया और उसमें भी 18 रुपये 52 पैसे का मजीद इजाफा हुआ है। तो न सिर्फ कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात बढ़ रही हैं, बल्कि जो घरेलू सार्फिन हैं उनकी भी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है कि एक तो सुई गैस नहीं मिल रही, जो मिल रही है वो बड़ी महंगी मिल रही है, और उसके बाद अगर ऑल्टरनेट फ्यूल पर जाते हैं, LPG की तरफ जाते हैं, तो उसको भी मुस्तकिल महंगा किया जा रहा है। इरफान खोकर साहब, चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे ज़रा कि कमर्शियल सार्फिन और घरेलू सार्फिन की मुश्किलात इस वक्त किस हद तक बढ़ चुकी हैं। तो इरफान खोकर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो 18 रुपये 52 पैसे फ़ी किलो का इजाफा इस वक्त ये किया गया है, ये कितना बड़ा इजाफा है? इससे एक घरेलू सारिफ और एक कमर्शियल सारिफ किस हद तक मुतासिर होगा? इस वक्त जो LPG की प्राइस बढ़ी है, और मैं समझता हूँ कि 2016 की पॉलिसी को हमें रिव्यू करना होगा। आप देखें 2016 आज से 8 से 9 साल कबल जो LPG की
इंपोर्ट थी वो 20-30% थी। आज एलपीजी की इंपोर्ट 60% है। हमें अपनी पॉलिसी पे जो ना रिव्यू करना पड़ेगा। हमने उसको रेगुलर ड्यूटी लगाई इसलिए थी कि जब शायद खाना अब्बासी साहब ने रखा कि 800 रुपए से सिलेंडर कभी भी ऊपर ना जाए, जब जाए तो हम लोग जो रेगुलर ड्यूटी हमने लगाई थी, आरडी लगाई थी, ताकि वो पैसा इस मद में खर्च करें कि लोगों की गुफ्ता खरीद, जब इंटरनेशनल कीमत बढ़े तो लोगों को गुफ्ता खरीद तक लाने के लिए। अभी मैं समझता हूँ कि लोगों की गुफ्ता खरीद से बाहर होगी एलपीजी, और कुदरती गैस आपको पता घरों में आएगी। जब आती अरबों रुपए सूट और खरबों रुपए की दोनों कंपनी एसएजीसी एसएनजीपीएल दोनों डिफॉल्ट कर चुकी है। लिहाजा हमें एलपीजी पॉलिसी 2016 को रिव्यू करना पड़ेगा, वो ताकि एलपीजी सार्फिन को सस्ती गैस हम मुयसर कर सकें। एलपीजी पॉलिसी 2016 को इस अंदाज में देखना पड़ेगा कि हम आवाम को सस्ती गैस कैसे दे सकते। देखिए हुकूमत का भी कुछ नहीं जाएगा, हुकूमत अपने पास से कुछ न दे, सिर्फ इस पॉलिसी को रिव्यू करे। जो पैसा इस मत में देखे, एलएनजी पे हमने अरबों रुपए खरबों रुपए हमने बर्बाद लुटा दिए लोगों को। दोनों सुई गैस कंपनियों ने सुई गैस की मद में लुटा बर्बाद कर दिए, लेकिन हम अरबों रुपए टैक्स देते हैं, वहाँ पे अरबों रुपए टैक्स की छूट दी जाती है। अब एलपीजी इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो उसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए बाकायदा। कि दूसरी बात ये कि एलपीजी गरीब का फ्यूल है, जो गरीब का फ्यूल है आज वो अगर उसको रिव्यू नहीं करेंगे, अगर उसको हम देखेंगे नहीं, तो जिस तरह लोगों की गुफ्ते खरीद से बाहर होता जा रहा है। और उसके बाद हमें क्वालिटी इंश्योर नहीं है, लोगों के पास क्वालिटी गैस मिलनी चाहिए लोगों को। और दूसरी बात ये कि ओगरा एलपीजी की जो कीमत है किलो की जारी नहीं करता, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। कि किलो की कीमत ना जारी करने की वजह से कि लूट का सूट कितनी हो रही है। आज 300 रुपए किलो के लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जो गालियां दे रहे हैं या बहुत बुरा भला कह रहे हैं एलपीजी इंडस्ट्री को, लेकिन हमारे अदारों को चाहिए जागना चाहिए। इस वक्त बात यह है कि एक कीमत का कोई ना कोई तो तयन होना चाहिए, ताकि किलो की कीमत का कुछ तयन, ताकि आर्टिकल 29 के तहत तमाम तरह इख्तियार डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के पास है। ये उसमें जो इख्तियार दिए गए हैं उसमें शीट नंबर 4 में। तो इरफान साहब, ये जिस पॉलिसी का आप जिक्र कर रहे हैं 2016 की, ये एक्चुअल इस पॉलिसी के जो बुनियादी नुकात थे और बुनियादी मकसद था इस पॉलिसी का, वो था क्या जिसको आप रिव्यू करने की बात कर रहे हैं? क्या उसमें ये नुकात शामिल नहीं थे कि ये एक गरीब का फ्यूल है और इसको सस्ता होना चाहिए, सुई गैस से आसान शराइत पर ये लोगों को फराहम की जाए और आसान कीमत पर मिले, थोड़ी सी कम हो इसकी कीमत? सर वो उस पॉलिसी में यही तो था कि गरीब का फ्यूल 800 रुपए का डोमेस्टिक सिलेंडर 11.8 kg का मिलना चाहिए। जब ऊपर जाएगा तो हमने जो आरडी ड्यूटी लगाई थी, जो जिसमें अरबों रुपए की मद में टैक्स जमा हुआ, वो हमने बनाई इसीलिए थी। शायद कहना बाकी साहब का नाम मैं इसलिए बार बार कोट कर रहा हूँ, वो कह रहे 800 रुपए से सिलेंडर ऊपर नहीं होना चाहिए लोगों की। उस वक्त की जब डॉलर 104 रुपए का था। अच्छा। बात यह है कि उस वक्त इम्पोर्ट उस वक्त 20% थी, आज इम्पोर्ट 60% हो चुकी है, यानी इम्पोर्ट ज्यादा है। हमने कहा था कि जब इंटरनेशनल कीमत उस वक्त $300 की कीमत, आज आप देखिए $600-700 क्रॉस करती है। हमने वो पॉलिसी बनाई गरीब को रिलीफ। तो इरफान साहब, इसका मतलब ये जो 800 रुपए से सिलेंडर ऊपर नहीं जाएगा और आज ये सिलेंडर जो 3025 रुपए का मिल रहा है, तो ये कोई 4 गुना ज्यादा उस पॉलिसी से कीमत हो चुकी है। तो इसका मतलब उस पॉलिसी की वायलेशन हो रही है, और उस सूरत में उस पॉलिसी में क्या था? पॉलिसी की वायलेशन हो रही है। और मैं समझता हूँ अभी हमें एलपीजी पॉलिसी 2024 पे सारी चीजों को अमेंड करना पड़ेगा, ताकि आवाम को उसकी देखे ना सर। बात यह कि आपने सुई गैस कंपनियों को पूरी छूट दे रखी, अरबों रुपए साल के साल बर्बाद करते। एलएनजी को आप वहां पे टैक्स छूट देकर वहां डालते और अरबों रुपए की चोरी कर देते। आप देखें कोई कंपनी ऐसी है जो इसमें बैंक डिफॉल्ट नहीं कर, दोनों डिफॉल्ट कर चुकी है। एक बाहर तो इरफान साहब, ये बताएगा कि ये पॉलिसी वायलेशन की सूरत में किस इदारे को हरकत में आना था, किसको कार्रवाई करनी थी, पॉलिसी पर अमल दरामद किसका काम था मुमकिन बनाना? सर वजारत पेट्रोलियम ने पॉलिसी बनानी होती, कोई भी पॉलिसी जो है वो उसकी वजारत बनाती है, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए एक ही अथॉरिटी है जो ओगरा अथॉरिटी है, जिसको इसको मॉनिटर करना होता है। मैं फिर एक दफा गुजारिश करूंगा, चेयरमैन ओगरा ने बहुत अच्छे इकदाम किए, नहीं अभी वजारत पेट्रोलियम या आने वाले जो हुकूमत होगी वो इसको कर सकी, चूंकि सेटअप में मुमकिन नहीं है ये चीजों को करना मुमकिन, क्योंकि एलपीजी पॉलिसी में बहुत से एतराज उठाए जा चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पे यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप को मुबारकबाद पेश करूंगा कि एफपीसीसीआई का इलेक्शन उन्होंने क्लीन स्वीप किया। हम एफपीसीसीआई से गुजारिश कर रहे हैं कि एक फोरम ऐसा बनेगा जिसमें चेयरमैन ओगरा भी बैठेगा, मिनिस्टर पेट्रोलियम भी बैठेंगे, उसमें डीजी गैस भी बैठेंगे और एक्सप्लोसिव वाले भी बैठेंगे। हमने सस्ती गैस कैसे दी जा सकती है,
एलपीजी और गैर में टेंडर का खात्मा कैसे हो सकता है? तो अब इरफान साहब, क्या ये नई पॉलिसी लाने से पहले या रिव्यू करने से पहले जो पुरानी पॉलिसी की वायलेशन है उसके जिम्मेदारों का तयन करना पड़ेगा? कहां से ये वायलेशन स्टार्ट हुई और जब ये पहली बार वायलेशन हुई उसके बाद आपने आवाज उठाई, आप लोग के कुछ डायलॉग्स हुए, हुकूमत के सामने आपने ये मामला रखा? सर मुझे ये आपका जो सवाल है मुझे इतनी तकलीफ देता है कि मैंने हर फोरम पे आवाज उठाई है, यार मेरी टेंडर हो, यार मेरी गैस हो, एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट हो, मैंने हर जगह हर फोरम पे मैंने ये आवाज उठाई है। इसलिए आवाज उठाई है कि आवाम को रिलीफ मिलती है। सर ये मासूम जाने जाती है, ये बाकी चीजें शालम मार्केट में देखे बरमार 2 नंबर स्टैंड, पाकिस्तान पूरे में हार्डवेयर दुकानों में जो स्टैंडल लटके पड़े हैं, ये जो सारे बम हर घर में पहुंच चुके हैं। सर CO2 की मिक्सिंग हो, मैंने आईजी राजा रिफर का बेहद मशहूर, उन्होंने DAG हेडक्वार्टर की ड्यूटी लगाई, मैं अभी 2 रोज पहले ये खत्म करके आया हूँ। वहाँ पे 11 जाने गई है सर CO2 मिक्स पे चक्कर में जी पन्नू आकल ने। इसी तरह जो LPG कीमत की बात है वो मैं बार बार, मेरे अलावा आप एक नाम बता दें जो आवाम की बात है, सस्ती LPG की या प्यारी LPG की या कुछ चीज। तो इरफान साहब ये बताएं कि ये अब आप लोग की डिमांड क्या है कि ये LPG पर, ये ओवरऑल गैस पर क्या सब्सिडी दी जाए हुकूमत की तरफ से? चूंकि हुकूमत ही कहती है कि हम महंगी गैस खरीद कर सस्ती तो नहीं बेच सकते। हमें हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो बंदे नीयत के साथ आवाम की बात करें, आवाम को सहूलत देने की वो बैठे। यहाँ पे अजारादारी या जो निजाम पहले से देखे, मैं फिर कह रहा हूँ 9 साल गुजर गए उस पॉलिसी को, हम उसको लेकर चल रहे। वो पॉलिसी अभी मैं कह रहा LPG पॉलिसी 2024 में आवाम को रिलीफ देने की बात की जाए। हमने सुई गैस लोगों को घरों में नहीं है, हम अगर LPG है तो LPG हमने। इरफान साहब वो आवाम को जो आप रिलीफ की बात कर, उसका तरीका कार क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है? हुकूमत जिन निर्खों पर गैस खरीद रही है, जाहिर है उससे जायद में ही या सेम उन निर्खों में ही आवाम तक पहुंचा सकती है, उससे कम में तो देना शायद उसके लिए मुमकिन ना हो। जी सर, जब रेगुलर ड्यूटी लगाई गई थी ना लोकल प्रोडक्शन के ऊपर, उसका मकसद ये था कि जब इंटरनेशनल जो पाकिस्तान में गैस का शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए, यानी डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है उसको पूरा करने के लिए रेगुलर ड्यूटी लगाई गई थी। जो पैसा उस बात में इकट्ठा हो रहा है वो पैसा रखा जाएगा। सीपी इंटरनेशनल कीमत जितनी भी ऊपर जाएगी वो जाएगी, वो गैप को कवर करने के लिए वो पैसे वहाँ डाले जाएंगे ताकि आवाम को गैस सस्ती मिले। अब होता क्या है सर, इंटरनेशनल जो कीमत है जितनी ऊपर जाती है उतनी ही गैस महंगी हो जाती है। बात ये है कि लोगों की तनख्वाही तो नहीं बढ़ी, डॉलर ऊपर चला गया, लोगों की उससे खरीद तो सीधे बाहर चली गई। बात यह है कि पॉलिसी ऐसी बननी है कि डॉलर जहां मर्जी जाता जाए, लेकिन आवाम को एक कीमत पे चीज को मिलनी चाहिए। जो लोकल प्रोडक्शन है उसके चंद लोगों का कब्जा है, LPG लोकल का पे चंद लोगों का कब्जा है। पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट में नदीम बाबर साहब ने हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर काम किया था कि एक तो इंपोर्ट के ऊपर टैक्स अलग करवा दिया था, दूसरा उन्होंने ये किया था कि जो पाकिस्तान की लोकल LPG पैदा होती है उसमें तमाम लोगों को मसावी तस्कीम की थी PPL के फार्मूले के तहत। लेकिन इरफान साहब पॉलिसी वायलेशन उस वक्त भी हो रही थी ना, उन्होंने उस वायलेशन के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए मेरी बात सुन, चेयरपर्सन की उस वक्त जो चेयरपर्सन थी उन्होंने ये वायलेशन सारी पर्सन OJDC की बंदरबांट गैस की हो रही थी और उसके बाद पार्कों की बंदरबांट हो रही थी। दोनों अदारों को कहा कि तुम लोग जो प्रीमियम बोनस दे रहे हो ये जगह टैक्सेस को ना लिया जाए। PPL तो मान गया, PPL ने वही गैस तमाम कंपनियों तक स्कीम करना शुरू कर दी, लेकिन OJDC ने वही अपनी हटदर्मी कायम रखी, पार्कों ने वही हटदर्मी कायम रखी और आज चंद लोगों के हाथों में लोकल गैस का कोटा है और वो मानमानी कीमत वसूल करते हैं। आप छोटा सा अंदाजा लगा लें। लेकिन इरफान साहब ये तमाम इदारे जिनका आप नाम ले रहे हैं ये हुकूमत के ही मातहत होते हैं ना, हुकूमत का ही काम था कि अगर इनमें कोई बिगाड़ है तो उसमें सुधार पैदा करना और अगर कोई पॉलिसी वायलेट हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन हुकूमत ने मुस्तकिल, पिछली हुकूमत की बात करूँ, उसने गफलत का मुजाहरा किया ना कि पॉलिसी वायलेशन के खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी बिल्कुल, आप देखिए मैं जो ये बात कहना चाह रहा हूँ ना कि फर्ज करें कि उसी गवर्नमेंट ने यानी PTI गवर्नमेंट ने टैक्स में जब रिलीफ दिया उसके बाद देखिए PPL फार्मूला, मैं वो कहता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी गैस पैदा होती है वो तमाम कंपनियों में साबित तकसीम होनी चाहिए, वो चंद हाथों में नहीं रहनी चाहिए। फ्लड आया तो आप अंदाजा करें उस वक्त इम्पोर्ट तो ना आ सकी, लोकल गैस ही 400 रुपए किलो बिकी, वो चंद हाथों में गैस थी, वो जब चाहते थे कीमत बढ़ा लेते थे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में ओगरा में जिन कंपनियों को लाइसेंस दिए तमाम में मसावी तकसीम कर दी जाए। जब आप मसावी तकसीम करेंगे तो इम्पोर्ट महंगी होगी, मिक्स करेंगे तो कीमत ऑटोमेटिकली आधी की कीमत नीचे आ जाए। अभी मैं समझता हूँ
हम अगर सर जोड़ के बैठे, हम 100 रुपए किलो कीमत कम कर सकते हैं या गवर्नमेंट अपने पास से कुछ नहीं देगी। अच्छा, गवर्नमेंट अपने पास से कुछ नहीं देगी, लेकिन हम अभी मैंने यूबीजी के प्रेसिडेंट जनाब जुबैर साहब से बात की है, मैंने आमर अताब बाजवा से बात की, अभी जो स्टैंडिंग कमेटी हम लोग इसको रिव्यू करेंगे बैठ के, सिर्फ इसलिए बैठेंगे वो कमेटी करेगी। सही। और इरफान साहब, जाहिर है ये जो भी आपकी कमेटी है, अब वो हुकूमत को जो अप्रोच करेगी नई हुकूमत आने के बाद, तो उसी वक्त कुछ हो सकेगा। अब ये निगरान हुकूमत से तो जाहिर है मामलात नहीं इस वक्त लेकर आगे चले जा सकते ना। बिल्कुल जी, जब तक नई पॉलिसी नहीं बनती है वहां को रिलीज नहीं मिल सकता, ये मैं बड़ी क्लियर बात कर दूं। हाँ, बाकी जो इसको कीमत का लूट खसूट की जा रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, जो आर्टिकल 29 के तहत ओगरा ने इख्तियार नीचे इन्होंने वो इख्तियार। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान खोकर साहब, चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद थे। वो कह रहे थे कि गैस की कीमतों में कमी लाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए 2016 की एलपीजी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। अब नई हुकूमत आती है और रिव्यू करती है नहीं, आने वाले वक्त में इस पर मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद अहम स्टोरीज पर बात करेंगे। जैज के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB यूट्यूब। अभी जैज वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज सुपर 4G। Golden Pearl White Beauty Cream with added super active serum, glutathione, alpha arbutin और niacinamide से डार्क स्पॉट्स गॉन। अब सबको मिलेगा ब्राइट ग्लो मेरे जैसा। Golden Pearl White Beauty Cream, love your skin। स्टार्ट कर। रस्ते घटाने वालों को, वतन चलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। वही माहौल जो पिछले हुकूमतों में बनता है, उसी को हम देखेंगे एक बार फिर से। मैं उससे भी बुरा माहौल देखा। आपकी इत्तला के लिए था जो रेहान खान के साथ शादी थी, वो 7 मुहर्रम हराम तो हुई थी, जो पहला निकाह हुआ था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को न दीन का इल्म न दुनिया का इल्म। और मरियम नवाज को आप लोगों ने दावत दी थी कि वो आए कराची से इलेक्शन लड़े। एमकेएम पाकिस्तान ने किसी भी पर्सनैलिटी को मेरा हाल की दावत नहीं दी है किसी जगह से इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्शन जो हो रहे हैं 8 फरवरी को, उसमें आप कंटेस्ट करेंगे? मैं 8 के इलेक्शन के लिए मेरी एक ही ख्वाहिश है कि ये अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। इलेक्शन से पहले आप किसी भी सूबे में कोई इत्तेहाद बनाने नहीं जा रहे, अकेले तने तनहा इलेक्शन में क्यों नहीं बनाएंगे? वो तो पहले ही तय होगा कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। मियां साहब वापस आए तो उनके बयानी में एक बड़ी तब्दीली आ गई है, तो इसलिए अब हम उनकी हरीफ जमात बन गए, अब उनके साथ नहीं चल सकते हैं। ये जो हम सब कोड वर्ड्स में गुफ्तगू करते हैं और खुलकर बात नहीं करते, मैं खुलकर कर देता हूँ। हमने एक कदम उठाया, उसके मुजवरात से हम 10 साल हमने उसकी सजा भुगती है। तमाम पार्टियों के लिए यकसा माहौल बनाओ, कोई लाडला ना हो। तज्जिया पीर से जुम्मा रात 8:03 पर। फासले की हर जंजीर को तोड़ के हम पहुंचे पाकिस्तान के हर सूबे, हर गांव, हर कस्बे, हर गली से जुड़े मसाइल तक। हर खबर खास होगी, हर रंग और उमंग हमारी है पहचान। हमारी सकाफत ही तो है हमारी आन। बने हर पाकिस्तानी की आवाज, देखिए पाकिस्तान का हर रंग। बोल पाकिस्तान, रोजाना शाम 5:03 पर सिर्फ बोल न्यूज पर। This half-hourly clock is brought to you by Advanced Hair Removing Formula, Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream। जापान में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान शोलों में घिर गया। लैंडिंग के दौरान आग लगने से तैयारा मुकम्मल जलकर तबाह। अमले समेत 379 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जनूबी कोरिया के अपोजिशन रहनुमा चाकू हमले में जख्मी। हमलावर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑटोग्राफ लेने के बहाने आगे बढ़ा। ली जे-म्यूंग की गर्दन में चाकू घोंपकर भाग निकला। जापान में शदीद ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 48 तक जा पहुंची। 100 से ज़ायद ज़ख्मी। वस्ती सूबे इशिकावा में ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई।
हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन, एलोवेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन, एलोवेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। Golden Pearl White Beauty Cream with added super active serum, glutathione, alpha-arbutin और niacinamide से skin extra bright. Golden Pearl White Beauty Cream. Love your skin. दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, फेस रहे फ्रेश, क्लीन और ब्राइट। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, लेट योर फेस ग्लो। जैज के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB यूट्यूब। अभी जैज वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज सुपर 4G। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये, आपने आगे अपनी नई टीम बनाई थी, SSPs को आपने तैनात किया था, फिर आपने घोटी, शिकारपुर, मटियारी, इधर के SSPs को क्यों फारिग किया? क्या वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे? पहले मैं स्ट्रीट क्राइम पे आपको बताता हूँ। मैंने जो भी गोशगुजार किया है वो डेटा के हिसाब से किया है, और ये डेटा मेरा डेटा नहीं है, ये डेटा CPLC का डेटा है और ये शेयर कर लेंगे। ये आपसे हम शेयर भी कर सकते हैं। और उसमें जो डेटा के हिसाब से कमी आई है, जो आपने बात की थी किडनैपिंग की, बिल्कुल मैंने आपको खुद मेंशन किया था कि 2 किडनैपिंग्स हुई है हाई प्रोफाइल। ओवरऑल किडनैपिंग में कमी हुई है शहर में, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। और किडनैपिंग हुई है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसमें किडनैपी रिलीज है, रैंसम के पैसे वापस हैं और टीम गिरफ्तार है। ना सिर्फ मेन लोग गिरफ्तार है, उसमें ऐसे ऐसे लोग गिरफ्तार किए जो फैसिलिटेटर्स थे। और मैं आपको ये बता दूं कि उसमें हमारे अपने पुलिस की वर्दी पहनने वाला भी हमने गिरफ्तार किया है। जहाँ तक बात की आपने ताजिर की, बिल्कुल उस पर हम काम कर रहे हैं। आज भी एक आपके मीडिया के चैनल्स पे आ रहा होगा कि एक वो पकड़ा गया है लियारी में, और उसने काफ़ी ताजिरों को धमकियाँ दी हुई थी। उसने 2009 में, वो जो मैंने पढ़ रहा था, 2009 में उसने कलाकोट थाने के ऊपर अटैक किया था। और जिस वक्त उसने अटैक किया था उस वक्त मैं TPO लियारी था और मैं उसी थाने में मौजूद था, और वो मुकाबला मेरे साथ ही हुआ था उनका। तो पुलिस अपना काम कर रही है। और एक और भी इसमें ब्रेक थ्रू हुआ है, जिसमें हमको एक तो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हुआ था, जिसमें एक भत्ता खुद पकड़ा गया। अजीब नामों से वो भत्ता ले रहा था। जब उसको पकड़ा गया तो पता चला कि बिल्कुल ही आम किस्म का लोफर किस्म का आदमी था। उससे सिमें भी मिली, उसके अकाउंट भी मिले हैं। एक और भी इसमें हमारा ब्रेक थ्रू हुआ है, पंजाब से हम इसको एक बंदे। निगरान वज़ीर इत्तलात अहमद शाह और दीगर पुलिस अफसरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और 70 करोड़ डॉलर की किस्त का मामला, जिस पर IMF को तमाम शराइत पर अमल करने की यकीन दहानी करा दी गई है। वज़ीर ख़जाना गवर्नर स्टेट बैंक को उन्होंने IMF को ख़त लिख दिया है और तमाम तयशुदा शराइत नाफिज करने का अज़्म भी उस ख़त में वाज़े तौर पर एक बार फिर दोहरा दिया गया है। जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि 2024 में माली साल में अफराते ज़र की शरह कम रहने का इम्कान है, और अगर ये शरह कम होती है तो उसके माशी एतबार से कितने बेहतर असरात मुरतब होंगे। 20 से 22% तक रहने की ये तवक्को की जा रही है। और स्टेट बैंक का ये कहना है कि 2023 मौशी मसाइल की वजह से चैलेंजिंग रहा था, स्ट्रक्चरल कमजोरियों की वजह से मईशत संभल नहीं सकी और महंगाई का मसला भी उस दौरान अपनी पीक पर रहा, लेकिन 2024 में हालात काफ़ी बेहतर होंगे। अब क्या वाकई स्टेट बैंक का ये दावा हकीकत पर मबनी है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे फ़ारूक सलीम साहब, मारिया माशिया ने। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये 11 जनवरी के बाद जो किस्त पाकिस्तान को मिलने जा रही है, 70 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के पास आ जाएंगे, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी में कितने बेहतर असरात मुरतब हो सकते हैं? फौरी तौर पर कहीं कोई ऐसा बड़ा चेंज आता हम देख रहे हैं जो कि पॉजिटिव हो? IMF से जो हमारा प्रोग्राम चलता है, IMF से जो हमें बात मिलती है, उसका जो असल बेनिफिट है वो एक एतमाद और एतबार का जो मामला शुरू होता है, यानी कि पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर कॉन्फिडेंस बाकी मालियाती इदारों को आ जाता है। 700 मिलियन डॉलर की किस्त है, बड़ी किस्त है, लेकिन इससे कोई मईशत के ऊपर कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के
मस्बत असरात फौरन नजर नहीं आएंगे, लेकिन वर्ल्ड बैंक को कॉन्फिडेंस आ जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत सारे हमारे जो बायलैटरल लेटर्स हैं जिसमें सऊदी अरेबिया है, चीन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उनको एक दर्जे का जो है वो कॉन्फिडेंस सामने आ जाता है, एक हेल्थ का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में कंटिन्यू कर रहा है। तो वो जो सिंबल है, जो इशारिया है, जो इंडिकेटर जाते हैं, वो बड़ा मस्बत जाता है। सही। और सर ये जो पिछले 5-6 माह से जब से SIFC की फॉर्मेशन हुई है, जो नई इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में बातें हो रही हैं, ज़ाहिर है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान है, उसमें एक लंबा टाइम लगना है। शॉर्ट टर्म जो चैलेंजेस पाकिस्तान के इस वक्त हैं इकॉनमी के, उनका इस वक्त सोल्यूशन क्या है? नई हुकूमत आने वाली है, उसके लिए बड़े चैलेंजेस होंगे, तो और फिर आगे उसको बजट भी बनाना है, तो ये अगले 3-4 माह कितने मुश्किल देख रहे हैं आप नई हुकूमत के लिए पाकिस्तान में माशी एतबार से? 2023 का जो साल गुजरा है उसको अगर हम पहले 5-6 महीने अलग कर लें और आखिरी 5-6 महीने अलग कर लें, तो पहले जो हाफ है 2023 का, उसमें तो 3 बड़े चैलेंजेस सामने आए थे। हमारी करेंसी बहुत तेजी से गिर रही थी, जो महंगाई है, खासतौर पे जो खुराक की महंगाई है, उसने पिछले 40-50 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और फिर फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व बहुत तेजी से गिर रहे थे। पिछले 4 या 5 महीनों में कुछ मस्बत इशारे सामने आने लगे हैं। उसने देखा कि सऊदी अरामको ने कोई $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, सऊदी कंपनी है वाफी एनर्जी, उसने कोई $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, शंघाई इलेक्ट्रिक ने ऐलान किया कि उसका $2 बिलियन का जो थर्ड कोल का पावर प्रोजेक्ट था, उसकी फाइनेंशियल क्लोजिंग हो गई है। इत्तसलात ने, आपको पता है कि कोई $490 मिलियन का टेलीनॉर पाकिस्तान जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। साथ ही साथ जो हम जैसे पहले कह रहे थे, वर्ल्ड बैंक का $350 मिलियन का एक सब्सिडाइज करता है, उसको IDA ने मैच किया है, अनदर 350 मिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 250 मिलियन है। उसके नतीजे में हमारे रिजर्व भी कुछ बड़े हैं। अब बड़े सवालात इलेक्शन के बाद, देखिए इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा सवाल जो मेरे ज़हन में आता है वो ये है कि क्या जो हुकूमत मुंतखब होके आएगी, इलेक्ट होके आएगी, उसकी तरजीह क्या होगी? क्या तरजीह सियासत होगी या तरजीह जो है वो मईशत होगी? दूसरा सवाल ये उठता है कि जो माशी पॉलिसी है, क्या उसमें तसलसल नजर आएगा, पॉलिसी कंटिन्यूटी नजर आएगी, या जो पॉलिसी पिछले कुछ महीनों में हमें नजर आ रही है वो नहीं रह सकेगी? और फिर सियासी एतबार से जो तकसीम की सियासत है, क्या वो दूर हो जाएगी? क्या सियासी अदम इस्तेहकाम कुछ दूर होने लगेगा या नहीं हो पाएगा? तो ये 3 बड़े सवाल हैं जो इलेक्शन के बाद के पीरियड में मेरे ज़हन में आते हैं। तो फारूक साहब, ये इसमें जो ये आपका सवाल है कि ये जो पॉलिसी है इस वक्त, इकोनॉमिक पॉलिसी, इसकी कंटिन्यूएशन रहेगी या नहीं रहेगी? क्या ये ऑप्शन भी पाकिस्तान के पास है कि इसका तसलसल कायम ना रह सके? चूंकि ये जो अशारिये इस वक्त थोड़े से हमें मुस्बत सिमत में नजर आना शुरू हुए हैं। स्टेबिलिटी तो दरअसल उस वक्त आएगी जब एक मुंतखब हुकूमत आ जाए और वो भी फिर उस पॉलिसी को आगे लेकर चले, तो 2-3 साल तक उसकी कंटिन्यूएशन रहे। देखिए, एक जो इदारा बन के सामने आया है जिसको हम SIFC कहते हैं, उसकी कानून साजी हो चुकी है, वो कानून का हिस्सा बन गया। वो जो भी हुकूमत आएगी, मैं समझता हूँ कि उसको ख़त्म कर देना वो शायद मुमकिन नहीं होगा। अब ये माशी पॉलिसी की कंटिन्यूएशन होगी, जो ओवरऑल माशी पॉलिसी है, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। इस स्टेज पे ये कहना हुकूमत कैसी बन के आएगी, क्या वो मखलूत हुकूमत होगी, क्या किसी एक पार्टी को जो है वो मेजॉरिटी मिलेगी? हमारा तजुर्बा, एक्सपीरियंस, तारीख ये बताती है कि जब मखलूत हुकूमत सामने आती है जिसमें बहुत सारी पार्टी मिल के हुकूमत करती हैं, उसका नतीजा मईशत के हवाले से कुछ अच्छा नहीं निकलता। अब जो सर्वे सामने आ रहे हैं, जो ग्राउंड परसेप्शन सामने आती है, उसमें महसूस यही हो रहा है कि एक कोalition गवर्नमेंट सामने आएगी, और कोalition गवर्नमेंट का, जैसे मैंने पहले कहा, उसका मईशत के हवाले से कुछ तजुर्बा इतना मस्बत नहीं रहा।
अच्छा, तो फारूक साहब ये अगर थोड़ा सा हम सेक्टर वाइज बात करें, भी पाकिस्तान का हर इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, गैस की कीमत बढ़ती जा रही है, उनके लिए मुश्किल हो रहा है इंडस्ट्री को रन करना, और इसी वजह से फिर एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ रहा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट उस हद तक नहीं बढ़ पा रही जितना बढ़ना चाहिए। हम स्टॉक एक्सचेंज को देख रहे हैं, वो इस वक्त बड़ा हाई पर जा रही है। तो ये ओवरऑल जो ये मुख्तलिफ सेक्टर्स की इस वक्त परफॉर्मेंस है, ये जो स्टेबिलिटी है, ये एक हकीकी स्टेबिलिटी है, आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, या ये इसमें कहीं एक कोई वक्ती मामला आप देख रहे हैं कि टेम्परेरी कोई स्टेबिलिटी इस वक्त मौजूद है? अभी तो कुछ माह हुए हैं और कुछ मस्बत इशारे सामने आए। तो एक चीज की जो तफरीक करनी पड़ती है वो है इंतजामी इक़दाम और पॉलिसी। अभी जो मस्बत इशारे हमारे सामने आए हैं वो ज्यादातर जो इंतजामी इक़दाम उठाए गए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उठाए गए हैं, उनका नतीजा सामने नजर आ रहा है। दो चीजें जिनका अभी भी फुकदान है, एक तो इस्लाहात का फुकदान है और पॉलिसी का फुकदान है। इस्लाहात के बगैर जो है, जैसे आपने जिक्र किया, बिजली के शोबे के अंदर जो हमारा कर्जा कहीं 2.5-3 हज़ार अरब के करीब पहुंच रहा है, इसी तरह गैस के शोबे के अंदर भी कोई 2.5-3 हज़ार का गर्दिशी कर्जा है। पिछले साल कोई 520 अरब रुपए की बिजली चोरी है। इसके इन सेक्टर्स के अंदर अभी किसी किस्म की ठोस पॉलिसीज या रिफॉर्म सामने नहीं आई, इंतजामी इक़दाम सामने आए हैं। और यकीन कीजिए कि SIFC की हम बड़ी बात करते हैं, SIFC जो है वो रिफॉर्म्स का मुतबादिल नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट सब्स्टिट्यूट। तो फारूक साहब, ये SIFC के जो भी फवाइद हैं, जो समरात हैं, वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस का हिस्सा है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस अभी पाकिस्तान के पास और नई गवर्नमेंट के पास क्या होंगे? शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो हम 70, 72, 75 सालों से जो गलतियां कर रहे हैं माशी एतबार से, उसके लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। अच्छा। जब तक रिफॉर्म्स का मसला, रिफॉर्म्स का जो डायरेक्शन है वो नहीं मुल्क या मईशत पकड़ पाती, उस वक्त तक मामला सीधा होता नजर नहीं आता। दो बड़े शोबे जो हैं गैस और बिजली के, उनमें जो क्वांटम है, जो गलतियों का भार है, वो इतना बड़ा है कि वो पूरी की पूरी मईशत को ले डूब सकता है। उसमें ये पोटेंशियल है। यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि कोई गैस और बिजली के शोबे में मिला के कोई 4, 5 या 6 हज़ार अरब का गर्दिशी कर्जा चल रहा है, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हमने चलो, यानी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कोई इस वक्त मौजूद नहीं है। पैमाने पर रिफॉर्म्स करने होंगे, तभी पाकिस्तान की मईशत को बेहतर अंदाज में आगे लेकर जाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। अभी आपको पिशावर लिए चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरबराह पाकिस्तान पिशावर के मनाजिर आप देख रहे हैं, जहां PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आने वाले इलेक्शन से मुताल्लिक उनकी गुफ्तगू चल रही है, किस अंदाज में उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, और इस वक्त जो इलेक्शन कैंपेन उनकी जानिब से जिसका आगाज़ किया जा रहा है उससे मुताल्लिक वो तमाम तफसीलात से मीडिया को आगाह कर रहे हैं। और मुख्तलिफ हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के जो भी नुमाइंदगान हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अपने कागजात भी जमा करवाए हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में कीनू की करोड़ों डॉलर की एक्सपोर्ट इस वक्त खतरे में पड़ चुकी है, चूँकि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में नुमाया कमी का इस वक्त सामना है, और कीनू की सनत से वाबस्ता 4 लाख अफराद का रोज़गार और कीनू प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ में की गई 300 अरब रुपए की सरमायाकारी पर भी इस वक्त एक सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। क्या ये सूरत हाल है, इस पर आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। वापस आएंगे, मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में कीनू की सनत बहरान का शिकार हो गई। कीनू के एक्सपोर्ट में 50% कमी का इम्कान है, जबकि 50% प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां भी बंद हो गई। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में नुमाया कमी के बाद करोड़ों रुपए ज़र मुबादला के नुकसान का खदशा भी सामने आया है। कीनू की सनत से वाबस्ता 4 लाख अफराद के रोजगार को खतरा पैदा हो गया। प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों में 300 अरब रुपए की सरमायाकारी भी डूबने का इम्कान है। पाकिस्तान चंद साल कबल तक 4.5 लाख टन कीनू की एक्सपोर्ट से 22 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला हासिल कर रहा था, मगर
इस साल ये हुजम 1.5 से पौने 2 लाख टन तक महदूद रहने का इम्कान है, जिससे बमुश्किल 10 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला हासिल होगा। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन गुज़िश्ता 6 साल से पंजाब हुकूमत और वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और मुतल्लिका ज़री तहकीक के इदारों की तवज्जो कीनू की पैदावार को लाहक इन खदशात से आगाह करती रही है, मगर हुकूमती तवज्जो न मिलने की वजह से अब करोड़ों डॉलर्स का ज़र मुबादला कमा कर देने वाली ये सनत तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है और आइंदा 2 साल में पाकिस्तान से कीनू की एक्सपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद होने का खदशा है। तो ये पूरी सूरत हाल है। 50% अगर कीनू की एक्सपोर्ट में कमी आ जाती है तो कितना नुकसान एक्सपोर्टर्स को और फिर प्रोसेसिंग कंपनीज को होगा, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। सफदर सलीम साहब मरकजी नायब चेयरमैन है किसान इत्तेहाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये एकदम से इतनी बड़ी कमी, इतनी ज़्यादा शॉर्टेज क्यों ये सामने आ रही है? प्रोसेसिंग कंपनीज को भी नुकसान हो रहा है, उनकी सरमायाकारी भी डूबने का खतरा है और कीनू की एक्सपोर्ट में भी 50% की कमी हो रही है, तो ये इतने नेगेटिव आदादोशुमार क्यों सामने आ रहे हैं? सर मैं एक तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इसमें ऑनर लिया। बात तो हम कर रहे हैं ना एग्रीकल्चर की, जब ये बात करते हैं कि जी बैकबोन है आपकी इकॉनमी है ये इनकी और ये एग्री बेस्ड कंट्री है, तो फिर माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उसी पे इनकी तवज्जो नहीं है। हमारा जो ये होना था पर एकड़ यील्ड की हम तो बात करते हैं ना, जब किसान को आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इस हद तक बढ़ा देंगे तो उसके पास तो पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उस पर इन्वेस्ट करे। यार मुझे तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किसान एक ऐसा इंसान है जो इस मुल्क को खुराक मुहैया करने का जामिन है और इस पूरे मुल्क की फूड सिक्योरिटी का कस्टोडियन है। इसके बावजूद उसको तो आप जहर भी खालस नहीं दे रहे। पर एकड़ जो कीनू का जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो उस पे पेस्टिसाइड वालों ने जो स्प्रे थे वो उसकी प्रोडक्शन पे असर हुआ, उसको बीमारी लगी तो उसकी प्रोडक्शन कम हो गई। अच्छा, दूसरा आपने जो फर्टिलाइजर का ये जो पूरे मुल्क में आज हुआ खड़ा है कि आपकी हर चीज तो ब्लैक में जा रही है, तो फिर आपकी गवर्नेंस कहाँ पे है? अगर आप इस मेरे किसान को यूरिया भी रेट पे नहीं दे रहे, पिछले दिनों में हमारा एक सेमिनार भी था, वहां पे जो आपके मिनिस्टर हैं फूड सिक्योरिटी वो ये कह रहे थे कि हमारे पास फर्टिलाइजर की कमी नहीं थी और वो खुद मान रहे थे कि हम इसको मैनेज नहीं कर सके। जी, जब तक ये ब्यूरोक्रेसी, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, ये आपको ये चीजें मैनेज करने में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो फिर आपकी गुड गवर्नेंस में ये होना चाहिए कि आपके पास अगर खाद मौजूद है, आपकी सप्लाई पूरी है, जितनी आपकी डिमांड है उतनी आपने प्रोड्यूस कर ली। अब ये मंगवा रहे हैं उस पे अभी जो इनके बाहर से जो इम्पोर्ट किए इन्होंने यूरिया, तो आप किसान को क्या फायदा, आप उसका मेरे कीनू के ग्रोवर्स को क्या फायदा होगा? अभी तो ये डाउनफॉल इन्होंने लगा दिया ना इस पे आके कि जब आप उस कीनू को सिक्योर नहीं कर सके, उसकी प्रोडक्शन कम हो गई, उसको पेस्टिसाइड आपने खालिस नहीं दिया, वो दवाई उसको नहीं मिली या फिर उसकी प्राइसेस इस हद तक बढ़ा दी गई, तो वो मुनाफली तो उनकी और पे चेक एंड बैलेंस आपके किसी डिपार्टमेंट में भी नहीं किया, तो फिर किसान तो वो कर भी नहीं सका ना। और सफदर साहब ये आपके किसानों के जो मसाइल हैं, जो यूरिया का जिस तरह से ब्लैक में मिलना और महंगा मिलना, इस पर हमने इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स में आवाज़ उठाई और उमैर मसूद साहब को भी यहाँ बुलाया, वो हमारे साथ आए और कई बार आए और वो भी उस सेमिनार में मौजूद थे। वहाँ जो आर्मी चीफ के सामने आप लोगों ने तमाम डिटेल्स रखी, वो भी उसको भी हमने पूरी तरह से कवर किया। वहीद अहमद साहब को भी हमने बुलाया था यहाँ पर, जो पेट्रो इन चीफ हैं और कीनू की एक्सपोर्ट से मुतालिक उन्होंने बड़ी हौसला अफजा पुर उम्मीद बातें की थी। तो अब इस सेमिनार के बाद और चीज़ें हुक्काम बाला के इल्म में आने के बाद अब आपको कहीं कोई बेहतरी की उम्मीद? ये जो फिगर्स हैं ये आपको रिवर्स होते दिखाई दे रहे हैं, चूंकि 22 करोड़ से हम 10 करोड़ के ज़र मुबादला पर आ रहे हैं। कीनू से जितना हम कमाया करते थे उससे आधे से भी कम पर हम वापस आ रहे हैं। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं भी सेमिनार में मौजूद था, जो चीफ साहब ने वहां पे बात की, यकीनन हौसला अफजा थी और वो जो बात कर रहे थे वो पता चल रहा था कि वो दिल से बोल रहे हैं और वो उस मुल्क के साथ सिंसियर है। हम तो पहले दिन से कहते हैं ना कि फूड सिक्योरिटी का जो कस्टोडियन है वो किसान है और बॉर्डर सिक्योरिटी का जो कस्टोडियन है वो जवान है हमारा, तो वो तो अपनी कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो ग्रास रूट लेवल पे हमारा जो डिप्टी कमिश्नर है, हमने वहां पे भी बात की, ये तो उसने करवाना है ना। खाद मौजूद है तो डीलर उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो वो उसको क्यों नहीं दे रहे किसानों को? अब जब जरूरत नहीं रहेगी तो तब वो अवेलेबल होगी और वो फ्री आपको मिलेगी, तो उसका हमें क्या फायदा होगा? और जब जरूरत पड़ेगी तो आइंदा 2 साल में हालात क्या ऐसे पैदा होने जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान से कीनू की एक्सपोर्ट ही बंद होने जा रही है? क्या इतनी डाउनफॉल का शिकार है ये इंडस्ट्री?
इंडस्ट्री इसीलिए शिकार है ना कि ये तो आपकी लोकल प्रोडक्शन ही फिर पूरी नहीं कर पाएगी ना, इसमें कसूर तो गवर्नमेंट का है ना। हमने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की है कि अगर आप इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, ज़र मुबादला ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो हमारे जो खालिद बार साहब ने वहां पे कहा था कि हम किसानों को एक कोर्स समझ लें, आर्मी टीम से ये रिक्वेस्ट की, एक हमें कोर्स समझ लें और महीने में सिर्फ एक दिन दे दें ताकि हम अपने मसाइल आपको बयान कर सकें और उसके मुताबिक आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। अगर वो ये करते हैं, जो कमेटी ऐसी बनती है जो कम से कम ग्रास रूट लेवल पे हम उसको जो मसाइल है वो उनको बताते हैं और उस पर अमल दरामद होता है, तो फिर उम्मीद तो की जा सकती है ना। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क, उनकी भी हौसला यही था, बुलंद थे, और हमारा भी यही है कि ये इस मुल्क ने ट्रैक पे चढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। तो सफदर साहब, इसका मतलब ये कि हुकूमत चाहे वो पिछली हो या उससे पहले की हो या उससे भी पुरानी हो, पिछले 10, 15, 20 साल में जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो आप लोगों के मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम रही हैं। इसलिए अब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये अपील कर रहे हैं कि वो कोई कमेटी बनाए। जी सर, हमने यही कहा ना कि ये जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स आई हैं ये जातियात से निकले ही नहीं है। ये मुल्क के बारे सोचे ना, अपनी जात के बारे में तो ना सोचे ना। जब मुल्क के बारे में आप सोचेंगे तो फिर ही मुल्क टैक्स पे। और सफदर साहब, ये चलें वो कमेटी बन भी जाती है, उस कमेटी में आप लोग की भी रिप्रेजेंटेशन शामिल होती है, तो आप लोग की तजावीज़ हैं क्या? ये जो सनत इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है, इसको वापस अपने पैरों पर खड़ा कैसे करना है? कीनू की अगर हम मिसाल ले लें, इसकी एक्सपोर्ट को अगर डबल करना है या वापस उसी नंबर पर लेकर आना है, तो वो उसके लिए फिर क्या क्या इक़दाम ज़रूरी होंगे? सारे इक़दाम तो यही है ना कि हम जब पर एकड़ यील्ड हमारी बढ़ेगी तो उससे भी सरप्लस फसल होगी तो फिर ही आप एक्सपोर्ट करेंगे ना। ऊपर वाली पॉलिसीज तो गवर्नमेंट ने बनानी है ना। वो गवर्नमेंट जब बनाएगी, वो एग्रीमेंट्स तो गवर्नमेंट ने करने के किस किस मुल्क को हमने किस मिकदार में किनो भेजना है, लेकिन प्रोड्यूस हमने करना है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो किसान है वो पूरी दुनिया में ऐसे मेहनती किसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि बाकी जो दुनिया वाले हैं वो तो इम्प्लीमेंट्स उनके पास इतने हैं, वो एक तो बटन से वो बटन दबाते हैं और काम हो जाता है। और मेरा किसान तो मैनुअली सर्दियों की रातों में, दिसंबर की रातों में पानी लगाता है, सांपों से लड़ता है, जंगली जानवरों से लड़ता है, और उसके बाद जब उसकी फसल काटने का वक्त आता है तो उससे कोई खरीदता नहीं है। और जब उससे चली जाती है, अब मिडल मैन के पास चली जाती है, इन्वेस्टर्स के पास चली जाती है, तो फिर उसका रेट डिवाइड हो जाता है। अभी मेरा मक्की का काश्तकार रोल रहा है, जिस रेट पे मक्की परचेज की जा रही है उस रेट पे उसकी कास्ट ही नहीं उसको कर रही। हमने ये कहा था कि हमें खुदा के लिए जो आपकी ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, जिसमें आपका राइस है, उसका मक्की है, वीट है, शुगर केन है, इनकी सपोर्ट प्राइस आप मुकर्रर कर दें। दो की हैं, गंदम की गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करती है और परचेज करती है, शुगर केन की सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट मुकर्रर करती है और शुगर मिल वाले जो वो खरीद करते हैं। लेकिन मक्की और मेरे जो चावल है उसकी कहीं पे कोई सपोर्ट प्राइस नहीं है। हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के लिए इस एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री तो डिक्लेयर कर दें, इंडस्ट्री का दर्जा दे दें इसे। जो मेरे किसान को जो आप लोन देते हैं वो देते हैं 25% मार्कअप पे, कि आप इंडस्ट्री को इसी टीओआर पे आप फाइनेंस करवाते हैं। जब तक मेरे किसान की हालत, उसकी पेइंग कैपेसिटी आप नहीं बढ़ाएंगे, फसल का उससे काश्त करवा के खरीदने का वादा आप नहीं करेंगे और वो रेट उसको नहीं करेंगे, मिडल मैन का जब तक खात्मा आप नहीं करेंगे, तो फिर आपकी जो है पर एकड़ यील्ड नहीं बढ़ेगी। और पर एकड़ यील्ड नहीं बनेगी तो आपकी तो खुराक जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है तो वो तो हम तो वो नहीं पूरी कर पाएंगे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये एक हमने और कहा था कि और फिर हमने ये भी कहा था कि खुदा के लिए सिर्फ 3 साल के लिए एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। एग्रीकल्चर इमरजेंसी की बात कर रहा हूं, तो फिर ये मामला सही हो जाएंगे। और अगर इसी तरह हमने ये बातें करती रहनी है कि ये एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है, रीढ़ की हड्डी है, मैशियत हमारी इस पे खड़ी है, ये तो 47। ठीक है सफदर साहब, चलें, आपकी तजावीज़ यकीनन हुकाम बाला तक पहुंची हैं। अब देखते हैं कि इस पर अमल दरामद मुमकिन होता है। आपकी जो शिकायत हैं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कब तक हुकूमत दूर करने के काबिल हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सफदर सलीम साहब, मरकज़ी नायब चेयरमैन किसान इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन, एलोवेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। अब हेलो हेयर हर्बल शैम्पू के साथ अपने बालों को बनाए थिक एंड स्ट्रॉन्ग, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में।
Golden Pearl Hello Hair Herbal Shampoo. बाल मजबूत, पॉकेट फ्रेंडली। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, Aloe Vera Gel और Vitamin B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion। जैज के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB YouTube। अभी जैज वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज सुपर 4G। आप भी जा रहे हैं नून लीग में? एमकेएम पाकिस्तान ने हमेशा अपने इंतखाब नेशन पसंद पे इलेक्शन लड़ा है। अपने बारे में बोलने लगी मैं बिल्कुल गैर मुनासिब तरीका है अफगान माजी को बेचना, हमारे लापता लोगों का मसला ये मैंने एमकेएम जो है वो हमारे साथ कई दफा चली है। ये वही बात पार्टी है जिसने हमें सेनेट में वोट दिए तो मुस्लिम लीग नून ने आसमान से उठा लिया है। मुस्लिम लीग नून जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए चाहती है। दोनों शोबों के अंदर सर्कुलर डेट जो है वो आसमान तक पहुंच चुका है कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं कभी। इशू ये है कि हर दौर में हम देखते हैं कि कोई ना कोई किंग्स पार्टी उभर के सामने आती है। 2 मई के शेख रशीद साहब के लानती करार देंगे। इस बात को पक्का करें, धांधली ना हो। आपके अल्फाज हमारी अमानत है। थैंक यू वेरी मच। ये वाकया हमसे ऐसा सरदर्द हुआ 9 मई का कि शायद पाकिस्तान के दुश्मन भी ये न कर पाते। जरदारी साहब ने उठ के कहा कि चुप करो, पाकिस्तान खपे। पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की आवाम का सत्यानाश किया। बस बहुत हो गया, रोना धोना छोड़ दो। 4 पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो बड़े, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, ये डिसाइड करें कि हमने मुल्क के आगे कैसे चलाना है। सियासत के साथ सबसे जरूरी हमारी रियासत का वजूद है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई को इत्तेहाद कर रहे हैं, ऐसा नामुमकिनात में से है। पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे, ये फैसला हम कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। फासले की हर जंजीर को तोड़ के हम पहुंचे पाकिस्तान के हर सूबे, हर गांव, हर कस्बे, हर गली से जुड़े मसाइल तक। हर खबर खास होगी, हर रंग और उमंग हमारी है पहचान। हमारी सकाफत ही तो है हमारी आन। बने हर पाकिस्तानी की आवाज, देखिए पाकिस्तान का हर रंग। बोल पाकिस्तान, रोजाना शाम 5:03 पर सिर्फ बोल न्यूज पर। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। सिंपली सूफी एक्सप्रेस, 7 साल के सफर के पीछे 70 साल का तजर्बा, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ हमारे बेहतरीन जायके भी। सिंपली सूफी एक्सप्रेस के पास पाकिस्तान भर का एतमाद भी। अपनाइयत के सफर में आपके साथ ने बनाई है हमारी एक अलग पहचान। हम हैं सिंपली सूफी एक्सप्रेस, हम हैं पाकिस्तान। सिंपली सूफी एक्सप्रेस, आई लाइक इट। शुक्राना करूं अल्लाह का, सुनी दिल की दुआ। शुक्राना करूं अल्लाह का, सूफी मैं हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सूफी जो नाम है एतमाद का। स्टार्ट कर हर सुबह हो खुद को स्टार्ट कर। सेल्फ रिस्पेक्ट कर, खुद को तू हमेशा स्पार्क कर। स्टार्ट कर तेरे ही दम से तो चलती है वतन की जिंदगी। कर तू खुद चार्ज है, भरती है हर एक में रोशनी। हर दिन को खुद से स्टार्ट कर, भर दे तू उजाले रात पर। स्टार्ट कर खुद को तू वतन का पार्ट कर। स्टार्ट कर रास्ते घटाने वालों को, वतन चलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज।
नाअहली की सजा 5 साल करने की कानून साजी को सपोर्ट करते हैं। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नज़रसानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रूबरू अटॉर्नी जनरल के दलाइल। इस्तदा की अदालत ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले। चीफ जस्टिस के पूछने पर तमाम एडवोकेट जनरल्स ने अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, इस खला को अदालतों ने पुर किया। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा केस को 11 जनवरी तक ख़त्म करना चाहते हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस ज़माने में कायदे आज़म होते वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा अगर मैं कागजात नामजदगी जमा कराऊं और कोई कहे ये अच्छे किरदार का नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा। किरदार के बारे में कहा गया है इसराफ करने वाला ना हो। हम रोज़ बिजली पानी का इसराफ करते हैं, क्या कोई इंसान हल्फन कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का हामिल है? लापता अफराद के मामले पर तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में सियासत आश्कार हो गई। चीफ जस्टिस ने PTI वकील से मुकालमा किया। हम समझे शायद आप लापता अफराद के मामले पर आए हैं, आप तो इस मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। सियासी बातें करनी हैं तो TV टॉक शोज़ में जाकर करें। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, ना मुस्लिम लीग नून। एक मखसूस पार्टी आकर कहती है हमारे बंदों को उठाकर सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करवाई जा रही हैं। इस पर अदालत का क्या कर सकती है? मफाद आमा के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपके जिन बंदों को उठाया गया वो खुद अदालतों से रुजू करें, अदालतें खुली हैं। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी का हुक्म दे सकते हैं? आइन की कौन सी शिक अदालत को ऐसा करने की इजाज़त देती है? जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल तलब। चीफ जस्टिस ने कहा जब सब ओहदे पर होते हैं तो जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता। सब जिम्मेदारी कबूल करेंगे तभी मसला हल होगा। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत करना है। PTI इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशान केस। इलेक्शन कमीशन की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। सिंगल बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। दलाइल में कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI ने सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। वफाकी हुकूमत केस में फरीक ही नहीं। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है, उसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। PK 91 के रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस ने कहा एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठक करके तकर्री कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया। रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ेगा? बिला वजह की दरख्वास्तें क्यों दायर की जा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PK 91 को हार्ट के लिए इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन 5 जनवरी मुकर्रर। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी होगी। अपीलों पर 16 जनवरी तक फैसले होंगे। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 18 जनवरी। इंतखाबी निशानात 19 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी हमरा थे। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि चौधरी शुजात पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान हैं। उन्होंने हमेशा रवादारी और मफाहमत की सियासत की। जापान में शदीद ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 48 तक जा पहुंची। 100 से ज़ायद ज़ख्मी। वस्ती सूबे इशिकावा में ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। दर्जनों इमारतें तबाह। सड़कों में गहरी दरारें। रिहायशी इलाकों में आग भड़क उठी। हज़ारों घर बिजली से महरूम। सुनामी वार्निंग के बाद बड़ी तादाद में लोगों का इनखला। हेलो हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस कंडीशनर। इसमें मौजूद मिंट और टी ट्री ऑयल डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करें और बालों को रिफ्रेश। मीट
the new you. जैज के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB YouTube। अभी जैज वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज सुपर 4G। अब हेलो हेयर हर्बल शैम्पू के साथ अपने बालों को बनाएं थिक एंड स्ट्रॉन्ग, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में। गोल्डन पर्ल हेलो हेयर हर्बल शैम्पू, बाल मजबूत, पॉकेट फ्रेंडली। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। Golden Pearl White Beauty Cream with added super active serum, glutathione, alpha arbutin और niacinamide से डार्क स्पॉट्स गॉन। अब सबको मिलेगा ब्राइट ग्लो मेरे जैसा। Golden Pearl White Beauty Cream, love your skin। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। लासानी का जोशाना प्लस मलाठी, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक, गर्मी सर्दी में यकसा मुफीद। लासानी का जोशाना प्लस मलाठी। Golden Pearl White Beauty Cream with added super active serum, glutathione, alpha arbutin और niacinamide से skin extra bright। Golden Pearl White Beauty Cream, love your skin। आप भी जा रहे हैं नून लीग में। एमकेएम पाकिस्तान ने हमेशा अपने इंतखाबी नेशन पसंद पे इलेक्शन लड़ा है। मैं तो अपने बारे में बोल रही हूँ, बोलने लगी मैं। देखो गैर मुनासिब तरीका है अफगान माजी को बेचना, हमारे लापता लोगों का मसला ये मैंने। एमकेएम जो है वो हमारे साथ कई दफा चली है। ये वही बात पार्टी है जिसने हमें सेनेट में वोट दिए तो मुस्लिम लीग नून ने आसमान से उठा लिया है। मुस्लिम लीग नून जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए चाहती है। दोनों शोबों के अंदर सर्कुलर डेट जो है वो आसमान तक पहुंच चुका है। कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं कभी। इशू ये है कि हर दौर में हम देखते हैं कि कोई ना कोई किंग्स पार्टी उभर के सामने आती है। 2 मई के शेख रशीद साहब के लानती करार देंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Which you are appreciating, which you are viewing according to your respective potential, observation, reading. There are multiple contributing factors which develops your subjective opinions. Quran indicates 3, that if you want to learn, understand and appreciate the whole scheme of the universe, you have to ponder over 3 areas. One is self. Ponder over self, your own nafs, your own structure, your own biology, your own psychology. And this is one of the most complex entity to think about. The second is to observe the cosmos, and you learn from your cosmos. And third is to know, read and appreciate the stories of the past nations, history. So these are the 3 areas which can contribute in making up one's mind. Instead of just wasting my time, or your time for that matter, on delivering this talk, would invite and kick the interactive session, which probably I'm also looking forward, you're also looking forward. So let's jump to the question. And look at them, they're just nodding, yeah, go there. So let's start there. Okay, thank you. Are you going to talk? Alishba Khan Barech, hailing from Nushki, with secondary hometown in Quetta. Our standout achievement includes being the only Pakistani from Balochistan to receive a Cambridge University scholarship after being shortlisted in a global essay competition. Alishba, please join us here for the opening questions. Welcome, Mr. Prime Minister. The students here in this auditorium are among the most privileged students in Pakistan. And against them are millions of marginalized children who don't have access to education. What do you think against this backdrop? Will the government be able to fulfill the aspirations set out in the Pakistan 2025 vision document? First of all, it's such a delight to see you in such an accomplished position. Well, coming straight to the question that what a government can or can't,
let's have an honest conversation over here, because I never believe in a clever conversation. From where do government does the function of the service delivery? It collects its taxes and then it spends it. And the third source of the revenue is that if you don't have that, you're going to borrow it from the third multilateral entity or outside from someone to fill in that gap. So what is our cycle and what is happening with us? We have got a target of almost 21,000 billion rupees receivable tax or achievable, which we project that we should achieve that. And the receivables are around 7,000 billion rupees. So the gap is of almost 14,000 billion rupees. So you are living in a neighborhood where you have got a very tough situation with your security, terrorism, so forth, and few other things. Along with that, you have to develop an infrastructure to kick the economic growth and the rest. And then you have to couple it and provide the primary education, higher education to different socio-economic background of the people. The population is around 240 million people. How do you do that? How can you do that? The tax evasion is almost more than 10,000 billion rupees. And this is, I am talking about the documented economy, which by the way is almost 20%, and rest of the 80% is non-documented. So there is a non-documented economy, and there is a documented economy in which you cannot receive taxes. You would definitely lead the questions, whose responsibility is this to collect all these taxes? Of course, it's the government and government's related department, which is FBR in this case. We have not done it. This is not in last 3 months that we have not been able to hit that target. It is a consistent story with all kind of big leaders, small leaders, mid-sized leaders, military dictators, civilian dispensation. This is a वज़ीर आज़म तलबा और तालिबात से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि नौजवान कौम का मुस्तक़बिल हैं। लाहौर में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ तलबा और तालिबात से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि तलबा और तालिबात से मिलकर हमेशा खुशी होती है, और उनका मज़ीद कहना है कि नौजवान कौम का मुस्तक़बिल हैं। नौजवानों को मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की तलबा और तालिबात से गुफ्तगू, और उनका कहना था कि नौजवान कौम का मुस्तक़बिल हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ तलबा और तालिबात से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि नौजवान कौम का मुस्तक़बिल हैं। नौजवानों को मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करना होगा। नौजवानों से मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। I want to have a Denmark for contributing 9% as compared to 91. It can remain in my wish list, but I can't have that. It's painful. It's painful. It's slow. Both. So what do you do? As a caretaker, I can proudly say that after many years, we are the one in last quarter, we have achieved our tax target. This is amazing. If we could do it in 3 months, why the rest of the governments can't do? It is for the people like yourself. They need to answer and raise these questions. We did it. It's documented, it's published yesterday that in last quarter, we were able to achieve the tax target in the FBR. So if it can be done in 3 months, it means that it is practical, it's possible, and if it is not happening, there is something very seriously wrong with our governance structure. This is my opinion on it. Two is both the people and the government. Yeah, of course, government is part of the people. I mean, if I am electing a government, so I'm contributing towards that either resolution or the problem.
So I am part of the problem. And when you become in the government, and I have lended that support to you, so it means the two of us have brought it to the tango. Mr. Prime Minister, why do we always go into frenzy and last-minute coping mechanisms, shut down the schools and do this and that? Why can't we be like Beijing and control this issue? I mean, crop burning is one of the prescriptions, but then there is no law enforcement. You go on the motor and people are doing it without any fear of repercussions or them being caught. So what do you have to say about that? I completely agree with you. I mean, the enforcement is one of the challenges, as you have identified yourself in your question. The poor enforcement is part of the problem of the governance in this country. There are laws, they exist, but if he goes and tries to implement and apprehend that man, you would start agitating that his rights are being violated. And there is a group of rights emerge in this country wherever the law enforcement goes for the enforcement. There are occasions on which the law enforcement also are compliant for multiple reasons. Financial mismanagement, few others, political influence, they are there. But on the other hand, society also has a tendency to stop enforcement. So we are living in this milieu. Poor development and capacity building of the law enforcement agencies, lack of ethos. I mean, if you go and observe your bureaucracy who has to implement, you will be surprised the kind of a value system probably they personally hold. That is appalling, that is shocking, that is disappointing to say the least. We have a structure of a bureaucracy which does not have a sense of identity. That what was the Ottoman Empire? The Janissaries were the most committed group which ensured the structure of the empire. And those Ottomans were able to expand their good or bad agenda till up till Eastern Europe, primarily because of the Janissaries. If you go and see the structure of any nation state, empire, or